as a journalist whose work is around information, it doesn't always mean that who's consuming my information. लेकिन ये information बाहर आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? I think that is something which really matters. Globally, newspaper consumption कम हो गया है. इंडिया में नहीं हुआ है. But I wonder कि हम सिर्फ खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, पता नहीं. ये disappointing है, बहुत बार लगता है कि astrology, Bollywood and cricket. These are the only three things sell in India in media. So that has been the nature of our country's information consumption always. आपको जो लग रहा होगा कि कुछ बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे investigations करते हैं अखबार और वो सब है, वहाँ पे भी odd even चलता है. हमने आपको भी खुश कर दिया, आपको भी खुश कर दिया. तो ये मीडिया का सिस्टम है. Truth depends on the revenue model. तो वो इंसान, जिंदा इंसान जा रहा है आपके सामने और बोल रहा है कि मैं जिंदा हूँ, ये मेरे कागज हैं. आप बोल रहे हो नहीं, हमारा डेटा तो बोल रहा है कि नहीं, ये रॉन्ग है. You are lying. You're seeking truth. You're trying to bring all this in front of everybody. ये जो आप कर रहे हैं, does anybody care? एक सज्जन बारात लेके निकले, बैंड बाजे के साथ, ठीक है, जोर शोर से, और उनके हाथ में प्लैकार्ड है, तख्ती है, जिस पे लिखा हुआ है थारा फूफा जिंदा है. अब ये प्रोसेशन चल रहा है, बारात चल रही है, लेकिन बारात किसी लड़की के यहाँ नहीं जाती है, बारात किसी शादी के मंडप पे नहीं जाती है, वो सरकारी कर्मचारियों से मिलने जाती है. इस सज्जन का नाम है धूली चंद. इनकी उम्र है 102 साल. और इन्होंने ये बारात क्यों निकाली है? क्योंकि इनको प्रशासन को कहना है कि भाई मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सिस्टम में मैं मर गया हूँ पर मैं जिंदा हूँ. ये चीज़ सिर्फ धूली चंद के साथ नहीं हुई थी, हजारों लोगों के साथ हुई थी. एक नया सिस्टम आया हरियाणा में. सिस्टम का नाम था परिवार पहचान पत्र, और इसमें इस सिस्टम ने बहुत सारे लोगों को मृत घोषित कर दिया. ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी, एक न्यूज़ आया था, लेकिन सोचिए इसमें कितना अंदर जाना पड़ा होगा ये समझने के लिए कि सिस्टम ने लोगों के साथ क्या किया है और कितने लोगों के साथ क्या किया है. तो आज मेरे साथ जो है उनका नाम है कुमार संभव, एंड दिस इज वन ऑफ हिज many reports or investigative journalism articles that I came across. And this is just like one of the basic things, one of the many things he's done. He's no longer just a journalist. He's a researcher. He's a social entrepreneur. And he's created institutions along the way in his journey. तो संभव, पहले तो मुझे आपके अवार्ड्स गिनाने हैं, जिसको मैंने लिस्ट करके रखा है. ठीक है, और आप मुझे कहिएगा कि क्या मैं मिस कर रही हूँ. So you have received the Press Council of India National Award for Excellence in Journalism. You have received Shri Ram Award for Excellence in Financial Journalism. You have received Global Investigative Journalism Network's Global Shining Light Award. You have received the Red Link Award. You've received the Thomson Foundation Young Journalist from the Developing World Award. And one of your institutions that you've created, the Land Conflicts Watch, that too has received awards. One is the World Summit Award. Then there's the Digital Empowerment Foundation's E-Champion Award. और मैं थक गई हूँ बोल करके, ठीक है. So I'll stop at that. But let me ask you this first, कि ये जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपने 3 इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं अपने जर्नी में. आपने you have been the co-founder of the Reporters Collective. You started Land Conflicts Watch. You are running something called Nutgraph. Your journey it started from journalism, then you became a researcher, now you're a social entrepreneur, and of course you continue to research. ये जो आप कर रहे हैं, does anybody care? Do we care as people? You're seeking truth. I can see why you are doing this. You're seeking truth. You're trying to bring all this in front of everybody. सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, तो अब सत्य को परस्यू कर रहे हैं. लेकिन डू वी केयर? हमारी ज़िंदगी में हम अपनी उलझनों में हैं, हमारे स्ट्रगल्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं कई. टू बी ऑनेस्ट, इन्फॉर्मेशन फटीग भी है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, विच हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड विल डिस्कस ऑल दैट. बट इफ डू वी केयर? वाई आर यू, मतलब I don't want to know why you're doing it yet. I want to know, how do you look at us? Yeah. Do you really think we care about the work you're doing? No, first of all, thank you, Anuradha, for having me here in this conversation. And that was a very, very kind introduction. You're kind to point these things out. I think
For a young reporter, young journalist doing investigations, etc., because a lot of other things usually do not work in the Indian media journalism setup. So that's why awards are something that keeps many of us going. Awards are awards. I mean, after a point when you look back, it's like, okay, it's just one of the many things come along. But when you are in the process and, when you're working on these things, I think that it, in fact, just makes you think that, yes, people care. So that way, I feel that that's the importance of or significance of, say, awards, and they keeps you going. And now many journalists, I mean, there are so many young reporters right now who keep winning awards, doing really wonderful work. And I see they celebrate these small wins. Because, as I said, we work in a very journalism in itself works in a very sort of difficult environment, and the kind of infrastructure or support that this institution need doesn't really exist in say in a system like ours. So इसलिए इन सब का है थोड़ा बहुत महत्व, तो मैं उतना ही उसको बोलूँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं है. So yeah, that's one point because you mentioned them. लोग केयर करते हैं कि नहीं करते हैं, आई थिंक हाँ, ये एक सवाल है किस लेवल पे कितने लोग केयर करते हैं. पर मुझे ये लगता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इसमें इतने सारे लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी है. हमारे पास डेटा नहीं है कि क्या कौन केयर कर रहा है, कौन नहीं केयर कर रहा है, राइट? मे बी इन सम ऑफ आवर echo chambers we feel that people don't care, right? Because we have our things going on, people like us, we have our lives going on, right? It might also be true that many of the people outside our echo chambers may not be caring, but I'm sure there are also certain sections of our society, communities, जो शायद इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी केयर करते हैं. वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, वो एक जगह पे नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलता है कि ये इतना सेक्शन है या इतना सर्कल है जो इन चीज़ों की केयर कर रहा है. वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और अगर हैं भी तो शायद उनको डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है. जो जर्नलिस्ट अच्छा क्रिएट कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, उनके पास वो डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनकी जिंदगियों को वो अफेक्ट करती है. तो अगर एज अ जर्नलिस्ट whose work is around information, or researcher or social entrepreneur whose work is around information data, it doesn't always mean that who's consuming my information. उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये information बाहर आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ना कि सिर्फ कौन कंज्यूम कर रहा है, कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मगर ये बाहर आएगी तो क्या कुछ जिंदगियों पे कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ सिस्टम पे कुछ फर्क पड़ेगा, जिससे इनडायरेक्टली फिर जिंदगियों पर फर्क पड़ेगा. I think that is something which really matters. किन की कहानियां आप बोल रहे हो? जैसे जब मैंने जो आपने अभी कहानी बताई धूलीचंद की, मुझे नहीं लगता हमने जब स्टोरी पब्लिश करी थी, मैं और उस समय जो मेरी कुलीग थी रिपोर्टर्स कलेक्टिव में तपस्या, हम लोगों ने जब साथ में ये स्टोरी पब्लिश करी थी तो वो अल जजीरा में पब्लिश हुई थी. अब मुझे नहीं लगता धूलीचंद ने वो पढ़ी होगी स्टोरी, लेकिन उनकी कहानी जितने लोगों ने पढ़ी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि उस कहानी की वजह से उनकी जिंदगी में डायरेक्टली कुछ इमीडिएटली जाके हो गया होगा. लेकिन जो लोग इन सिस्टम्स के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स, उन तक ये बात गई, और उसमें आगे चल के कुछ अगर इंटरवेंशन आई एम श्योर हुआ है, उसमें डिस्कशंस हुए हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो और लोग उसको सफ़र नहीं करेंगे. तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए एक जो इम्पैक्ट जिसे हम बोलते हैं कि लाइफ में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, वो ज़रूरी है. ये इस वजह से हम करते हैं इसको, कि उतना नहीं है कि पीपल केयर और नॉट. ये डिसअपॉइंटिंग है, बहुत बार लगता है, क्योंकि अगर हम जब रीडरशिप देखते हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया की जो रीडरशिप है, अब तो और भी कम हो गई है. ट्विटर का एल्गोरिदम चेंज हो गया है, राइट? पहले उसके थ्रू मीडिया आर्टिकल्स पहुंच जाते थे, अब तो यू हैव दी स्मॉल इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स. व्हाट इज द सर्कुलेशन? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी हाउ मेनी पीपल आर रीडिंग दीज स्टोरीज.
But again, I think one factor is just seeking truth. Like I love doing that. मुझे कहीं publish भी ना करना पड़े, सिर्फ अपने लिए कि इस चीज़ की सच्चाई निकाल ली, इसको खोज लिया. वो है एक कीड़ा है उसका कि, और वो ना कि सिर्फ सच्चाई का है, वो आई थिंक मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, कि ये चार चीज़ें अलग अलग हैं, ये ऐसा हो रहा है, इसका इसके भीतर चल क्या रहा है, वो समझना. वो एक आई थिंक द अंडरलाइंग फैक्टर वही है कि उसके लिए हम करते हैं. तो वो फिर चाहे रिसर्च के थ्रू हो, चाहे जर्नलिज्म के थ्रू हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिव वर्क के थ्रू हो, सबका नेचर सिमिलर ही होता है कि चीज़ का मतलब समझ में आए कि ये हो क्या रहा है, पीछे क्या चल रहा है. और आउटपुट एग्नोस्टिक हो गए हैं अब तो. अब इतने सारे मीडियम्स हैं, अब ये हम इस चर्चा से भी इस सब इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं और डाल सकते हैं बाहर. अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही एक वो होना चाहिए. और कोई रिसर्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी जस्ट अ डैशबोर्ड ऑफ डेटा विच वी क्रिएट अ लॉट ऑफ टाइम्स, दैट पीपल कैन जस्ट एक्सेस data dashboards and say what does what mean. So yeah, there and I think these are the new models also when it comes to information that we need to work on, depending on people's attention span, as you said, information fatigue. So नए models से, नए medium से output आप कैसे information को निकाल सकते हो. So yeah, I think इस तरह से ये सारा सोच चलती रहती है कि इसको करें कैसे. और बहुत सारे लोग हैं जो आसपास जो इस सब पे सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं. I was fortunate to have good teams, people who have been really committed to this work and this cause. तो along the way जब institutions बनाए और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत पैशन वाले लोग आते हैं, तो हाँ, उन सब के साथ मिलके मज़ा आता है काम में, तो चलता रहता है. मैं एक चीज़ सोच रही थी जब आप बात कर रहे थे कि आपने कहा कि रीडरशिप कम हो गई है, लेकिन हम वी कीप परस्यूइंग. द इंटरेस्टिंग थिंग, वन ऑफ द थिंग्स, इस कॉन्वर्सेशन के लिए मैं थोड़ा सा जब रिसर्च कर रही थी तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या इंडिया में न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कम हुआ है. इंटरेस्टिंगली नहीं, ग्लोबली न्यूज़पेपर कंजम्पशन, न्यूज़पेपर पढ़ना कम हो गया है. इंडिया में नहीं हुआ है. बड़ा वंडर कि हम सिर्फ खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, पता नहीं. लेकिन वन ऑफ द थिंग्स वी वर टोल्ड earlier in the past, full एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए पेरेंट्स हमें कहते थे, बड़े हमें कहते थे कि अखबार पढ़ो, ठीक है, अखबार पढ़ना चाहिए. अभी क्योंकि इन्फॉर्मेशन का सोर्स बहुत कम था, बहुत जगह पे तो लाइब्रेरी भी नहीं थी, और लाइब्रेरी से इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए आपको एक्चुअली सीख करना पड़ेगा, आपको उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा. अखबार में मतलब परोस दिया जाता था, खबर परोस दी जाती थी, ओपिनियंस परोस दी जाते थे, और आपको बस ऐसे सामने रखा, आपको कंज्यूम करना है. अभी हमारे पास बहुत कुछ परोसा जा रहा है, जस्ट टू मच. एंड जब आप बीच में कहीं ट्रुथ परोसते हैं, मान लीजिए अभी मैंने किसी टीम को कहा, ये जो हमारे साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको कहा कि मेरे लिए ना एक रील बना दो, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर की राइवलरी के बारे में एक रील बना दो. 15 मिनट में वो बना देंगे रील. और आपने जो 6 महीने से रिसर्च करके जो काम किया है, आपका वीडियो का एक थंबनेल जाएगा और मेरे इस रील का थंबनेल जाएगा. मेरे रील के थंबनेल पे ज़्यादा क्लिक्स पड़ेंगे. ये जो है कि ट्रूथ टुडे इज कंपीटिंग विथ आइडियोलॉजी. ठीक है, कि कहाँ से आया है. कुमार संभव ने लिखा है तो ये तो बकवास ही करता है, इसका नहीं पढ़ूंगी. ठीक है, because my ideology is against whatever Kumar Sambhav's belief system is. Yeah. So truth is competing with the ideology, with our identity. He's written about Dalits. There's a problem with that. He's written about tribals. I will not consume this. Yeah. And so there's ideology, there's identity, there's also entertainment. मुझे इतना मजा आ रहा है इतने रील्स देखने में, मैं कुमार संभव का आधा घंटा का रिपोर्ट या 10 मिनट का लिखित रिपोर्ट भी क्यों पढ़ूं? वाई शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम इन इट? ठीक है. एंड मुझे वही लगता है कि एक तो अपनी लाइफ है, वो जो मैं शुरू में कह रही थी, अपनी उलझने हैं, प्लस डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो द फैक्ट दैट योर ट्रूथ, द ट्रूथ दैट यू आर सीकिंग इज कंपीटिंग विथ सो मेनी थिंग्स. एंड वन थिंग आई नोटिस व्हेन यू रिस्पॉन्डेड दैट, ऑफ कोर्स बुरा लगता है आपको कि रीडरशिप कम होती है, बट you're not chasing readership, you're not chasing viewership, you're not chasing likes like the rest of us.
you are ensuring that the truth comes out some way and it can affect change somewhere. पॉलिसी में एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए, सिस्टम जाग जाए, पॉलिटिकल पावर जाग जाए, कहीं पे कुछ हो. लेकिन ये जागने के लिए क्या कलेक्टिव विल नहीं चाहिए? यू थिंक ट्रूथ कैन चेंज, मतलब ट्रूथ कैन ब्रिंग चेंज just because it exists, just because it has come out, or do you need our will to back you? That is, I think, ये तो बहुत बड़ा और broader question है, which is, I think, affects all discourse, right? Political discourse. वो तो फिर हम की सरकार किस तरह की चुनते हैं. That's true. Right. उसमें भी वही है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी वही सेम, वापस मैं उसी चीज़ पे जाऊंगा कि हमारी यूनिफाइड सोसाइटी नहीं है इंडिया की, अनलाइक से अदर स्मॉलर कंट्रीज, और जहाँ पे इवन लाइक वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, उसमें भी ईदर यू सी लेफ्ट और राइट, दोज आर द काइंड ऑफ टू थिंग्स. हमारे उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, और उसमें हर चीज़ के लिए आपको सैम्पल साइज बहुत बड़ा मिल जाएगा. कि जिनको बॉलीवुड से ज़्यादा मतलब है, मेरे ख्याल से शायद वो ज़्यादा उसमें कंज्यूम लोग हैं. क्रिकेट है, बॉलीवुड है, एस्ट्रोलॉजी, वो ABC बोलते हैं मीडिया का. हाँ, हमारे वहाँ जब बोल देते हैं कि ABC इज ओनली 3 थिंग्स सेल इन इंडिया इन मीडिया, राइट? ABC, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड एंड क्रिकेट. तो उसका तो हमेशा से रहा है. हमारे न्यूज़पेपर्स उस पर चलते हैं. वाई द बिगेस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स आर रन ऑन ओनली ऑन दोज थिंग्स, राइट? उसमें फिर वो न्यूज़ थोड़ा बहुत होता है. दे हैव द लार्जेस्ट रीडरशिप. Fewer newspapers who have less of that and more of important news, etc., they have much lower readership. So that has been the nature of our country's information consumption always. उसमें जो मैंने वही शुरू में कहा कि उसमें से आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, और जो नहीं भी जानना चाहते, जिनको नहीं है, उनको भी पता नहीं है कि उनको सच की ज़रूरत है, और सच बाहर आएगा तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी. उन्हें नहीं पता है, एजुकेट ही नहीं किया हमारे सिस्टम ने और उस तरह से, और चाहता है सिस्टम कि वो नहीं हो उस तरह से एजुकेट, ताकि नहीं पूछें सवाल सच के बारे में. वो अफीम इसीलिए खिलाई जाती है ना, आप बोलते हैं तो ये ABC जो है वो अफीम है. वो जानते हैं हमारे राजनेता, वो जानता है हमारा सिस्टम कि इनको ABC आप खिलाते रहो तो सच नहीं मांगेंगे, सच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसीलिए मासेस में उतना नहीं है उसकी नीड, है ना. भले उनको पता है कि उन्हीं के लिए उनको पता नहीं है कि उन्हीं के लिए नुकसानदायक है. वो एजुकेट नहीं किए गए हैं, और करा भी नहीं जाएगा. तो वो रीडरशिप अगेन, सो दैट्स व्हाई आई फील दैट द नंबर्स, क्लिक्स, रीडरशिप डू नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू ट्रूथ, बिकॉज इट्स लाइक कि ये हो गई नहीं. वो जो आप बोलो कि कलेक्टिव विल है, वो इस हमारी सोसाइटी को उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत समय है. और इनफैक्ट द पॉजिटिव दैट इनिशियली यू टॉक्ड अबाउट कि न्यूज़पेपर्स की रीडिंग बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है अनलाइक अदर सोसाइटीज़ की, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लिटरेसी बढ़ रही है. लिटरेसी ग्राफ इज स्टिल इंक्रीजिंग. वो जिस बेस पे हमारा शुरू हुआ था उससे आगे बढ़ता है, तो दैट हैज़ इफेक्ट ऑन न्यूज़पेपर रीडरशिप एंड अदरवाइज. देयर इज मोर एंड मोर पेनिट्रेशन कीप्स हैपनिंग. लाइक यू सेड, हमारे माँ बाप हमको बोलते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट्स द विंडो. तो ये इन सब से रिलेटेड यही है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माय फादर यूज्ड टू वर्क इन अ रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक में काम करते थे. तो हम बहुत छोटे छोटे, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी छोटे कस्बों में रहे हैं व्हेन माय स्कूलिंग वाज हैपनिंग. एंड देन इंग्लिश न्यूज़पेपर यूज्ड टू रीच 1 day later. राइट. वो सेम डे नहीं आता था. सेम हियर. करेक्ट. सो देन वी हैड टू सिट एंड रीड कि एक दिन पुरानी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पर पढ़ना ज़रूरी है. अब वो चेंज हो गया है. तो इसीलिए वो रीडरशिप बढ़ेगी और अभी बढ़ती रहेगी. बट वही है कि पर उसमें भी वही होते थे, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ही आता था. चाहे तो आप काट सकते हैं पर एडवर्टीजमेंट के लिए, बट वही आते थे दोनों न्यूज़पेपर जो हमारे बड़े बड़े हैं. और इफ़ यू थिंक कि मोर सीरियस न्यूज़पेपर्स, दे वुड स्टिल नॉट रीच, क्योंकि उनका वही रीडरशिप नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फॉर देम टू रीच दैट मच, उतना अंदर तक जाने के लिए. तो सो आई फील कि एक चीज तो ये हो गई कि हाँ, वो कलेक्टिव विल जो चेंज आने के लिए है, दैट इज अ मच ब्रॉडर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल, mobilization or whatever, social change that comes through education, literacy, and then the information
consuming the right kind of information will be the third step, I guess. So I mean, I have my roots in a village in Bundelkhand. I still visit. जाता हूँ तो most of the time people are just consumed on these गोदी मीडिया वाले जो channels हैं जिसमें आधे से ज़्यादा like 90% of the time it's false information, propaganda. वो अफीम की तरह कंज्यूम कर रहे हैं वो. और क्रिकेट और वही बॉलीवुड क्रिकेट उसके अराउंड तो ये सब चलता रहता है. तो कोई nobody wants to learn about these rightful things, right? The truthful things masses में. मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला एज यू वर स्पीकिंग, क्योंकि मैं एकदम कॉन्स्टेंटली हैव बीन टॉकिंग अबाउट us as consumers and Yeah. us मतलब the collective rest Right. who are not working on seeking truth but Right. who will consume. But your perspective is different. Right. Because you are the one pursuing the truth, तो आपका perspective काफ़ी different. क्योंकि आप मेरी तरह अगर आप सोच रखें तो it will be all about chasing Right. viewership, readership, whatever. But आपका वो सोच है ही नहीं, तो it's a very different thinking. तो मेरा सवाल ही अब मेरे दिमाग में ही बदल गया कि ये सवाल वैलिड ही नहीं है आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज इट्स अबाउट दैट क्यूरियोसिटी एंड दैट ऑल्सो दैट अवेयरनेस Yeah. कि ये इसको निकालेंगे बाहर हाँ. तो फिर तभी बदलाव हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ होगा नहीं. और इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है. मैं अपना काम, जो आपने कहा, मैं अपना काम करती रहूँगा. हाँ, तो वो सॉरी मैं आपको इसी पे वो दूसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था, मैं वो यही था कि याद आ गया मुझे, वो ये था कि और एक तरह से ये एक प्रोफेशन है. डॉक्टर का अपना प्रोफेशन है, इंजीनियर का अपना प्रोफेशन है. अब उसमें तो नहीं है ना कि मैंने कितने ब्रिज बनाए, या उसका ये नहीं कि कितने मरीज होता है, किसी किसी का फैक्टर. वो मेरा है कि ठीक है मैंने कितनी स्टोरीज करी थी जब मैं रिपोर्टर था, बट उसमें इतना कितनी रीडरशिप है ये नहीं है. इम्पैक्ट हुआ, चीज बदली कि नहीं, वो. बट स्टिल एट द कोर ऑफ इट इज कि इट्स अ प्रोफेशन. आप जैसे कोई एक इंसान कोई भी काम कर रहा है, आर्किटेक्ट अपना काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो ट्रूथ सीकिंग इन इटसेल्फ इज अ प्रोफेशन. जर्नलिज्म is that, you know, it's a profession of truth seeking. Publishing वो मालिक लोग करते हैं आपके. तो न्यूज़पेपर वाला करेगा क्योंकि उसको पैसा भी बनाना है उससे. कितने लोग पढ़ रहे हैं अभी आजकल के उसमें भी कि इंस्टाग्राम में कितने आपके लाइक्स आ रहे हैं या यूट्यूब पे कितना हो रहा है, उससे पैसा आता है, उससे आपके ब्रांड्स इंडोर्समेंट्स आते हैं. सो दोज आर दोज फैक्टर्स. बट एट द कोर ऑफ इट, इफ यू टॉकिंग अबाउट कि एक जर्नलिस्ट क्या कर, मतलब जो जर्नलिज्म का जो एक्चुअली प्रोफेशन है उसका काम वही है. वो एक रिपोर्टर, इफ यू सी दोज लाइक ब्रिलियंट जर्नलिज्म मूवीज, अगर आप देखोगे स्पॉटलाइट, या उसका काम ये है कि उसको उसकी सच्चाई ढूंढनी है और उसको इस तरह से स्ट्रक्चर करना है, लिखना है या साथ में रखना है कि इट मेक सेंस. उसके बाद उससे कुछ हो जाए, लाखों लोगों ने पढ़ लिया, करोड़ों लोगों ने मिल गया, अवार्ड मिल गया, इम्पैक्ट हो गया, दुनिया बदल गई, इट्स अ बोनस. नहीं भी हुआ तो द सेटिस्फेक्शन इज कि हाँ वो मैंने वो सोर्सेज बनाए, उनसे वो इन्फॉर्मेशन ली, उसको एक स्ट्रक्चर में डाल दिया और ये हो गया, मेरी आज की रोजी रोटी हो गई. मैं जाके आराम से खाना पानी पी सकता हूँ, अपना घर जाके कर सकता हूँ. तो दैट इज द सेटिस्फेक्शन. उसके बाद जो हो रहा है दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल. तो वही कर्म जो है, तो इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ कर्मा कि वो हम कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में, मीडिया सिस्टम में उसको उस तरह से नहीं देखा जाता है. वो नहीं हो पाया उस तरह से डेवलप. इट्स नॉट इवन कंसीडर्ड लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशन. पैसा नहीं है एक तो आपके पास टैलेंट आएगा कैसे? यंग पीपल हु आर एम्बिशियस, वांट टू डू गुड इन अ सर्टेन प्रोफेशन, वांट टू हैव गुड लाइफ आउट ऑफ दैट गुड प्रोफेशन, वो है ही नहीं वो सिस्टम. तो देन यू एंड अप सीकिंग कि जिनके पास पैशन हो. अब पैशन के नाम पे गरीब तो आ नहीं पाएगा ना. पैशन के नाम पे वही आएंगे जिनके पास रिसोर्सेज हैं, बैकअप है, वो है, तो आपको टैलेंट नहीं आएगा. और उसके सो दैट इज वन, इट्स नॉट ट्रीटेड एज अ प्रोफेशनली, इट्स नॉट ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट. दूसरी कंट्रीज में है वो डेवलप, मोर एडवांस उसमें. और अब जो देखा जाता है ईदर टू वेज. वन इज कि ये बिजनेस है, तो आपके लाइक्स कितने हैं, रीडरशिप कितनी है, कितना प्रमोशन, कितना एडवर्टीजमेंट्स आ रहा है इसकी वजह से, और उसके लिए जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं या इन्फॉर्म, उनको फिर दे हैव टू चर्न.
द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल ब्रिंग यू मोर रीडरशिप। तो इसीलिए आपके ज़्यादा रिपोर्टर्स बॉलीवुड बीट पे होंगे, ज़्यादा रिपोर्टर्स आपके पॉलिटिकल बीट में भी हैं, बट वो पॉलिटिक्स जो कि पॉलिटिक्स की गॉसिप, राइट, किसने क्या बोला, कहाँ क्या हो रहा है, बट से ट्रूथ सीकिंग लाइक यू सेड कि उसमें नहीं, आपको मास लीडरशिप नहीं मिलेगी, तो उसमें आपको ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा क्योंकि इट्स नॉट, सो वो बिजनेस का एक मॉडल है। तो जर्नलिज्म हैज मोस्टली देन बिकम दैट बिजनेस मॉडल, वो बिजनेस के साथ चलेगा, विच इज़ नॉट हाउ इट वाज सपोज टू बी। इट वाज सपोज टू बी अ प्रोफेशन कि आप प्रोफेशनल तरीके से करो, उसमें आप उसका खुद का पैसा हो, खुद का रेवेन्यू स्ट्रीम हो, विच shouldn't affect how the profession should be carried out. बट वो नहीं है, सो देन बिकॉज यू हैव टू अर्न द रेवेन्यू, यू हैव टू डू द प्रोफेशन इन अ सर्टेन वे, तो उससे उसका चला गया। जो लोग कर रहे हैं एक्चुअली जर्नलिज्म, वहाँ पे क्योंकि पैसा नहीं है और फंडिंग नहीं है, सो इट बिकम्स मोर लाइक एक्टिविज्म, राइट। और फिर अब वो उसके इतने ड्रॉबैक्स हैं कि यू नो यू डू इट इन लिमिटेड रिसोर्सेज, देन यू हैव टू टेक पंगा, देन आपके पीछे लोग आएंगे, फिर आपके पास ऊपर केस होंगे, और फिर वो पूरा एक्टिविज्म में कन्वर्ट हो गया है। मतलब क्यों ये दो चीज बीच में क्यों नहीं हो सकता, विच इज जस्ट लाइक प्योरली सीकिंग ट्रूथ एंड पुटिंग ट्रूथ आउट। आइडियोलॉजी सबकी होती है, अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी, एवरीबडी हैज, बिकॉज यू आर वोटिंग, यू हैव एन आइडियोलॉजी, यू आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। बट आई से दैट डजंट इवन हैव टू कम इन जर्नलिज्म। सरकार कोई भी हो, सच तो आपको बताना है, सच लिखना है, सच बताना है जो भी हो रहा है, and that should be purely treated as a proper profession, and that's how it should be. तो वो so I feel कि वो उस लेवल पे is what how we treat how information should be treated, और वही मोटिव होना चाहिए, उस तरह से होता है। मतलब मेरा ये डिस्कशन हुआ भी है कई बार लोगों से, जैसे एक बार you know they always say journalist is not the story. Yeah. आप खुद नहीं हो स्टोरी ना, आप जो कर रहे हो, जिनकी लोग कहानी कर रहे हो, लेकिन फिर अभी it's has become such a, like you say, either it's a sold out media, what now has been called Godi media, thanks to our Ravish ji, now and then the other one is like activism, you know, आप तो against ही हैं, आप तो ये करेंगे उसमें, तो वो एंड दैट्स आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, नो व्हाट यू आर सेइंग, कि आपकी आइडियोलॉजी है, ये तो बकवास करता ही रहता है। अगर मैं लिख रहा हूँ ट्राइबल के बारे में या दलित्स के बारे में या वो है, तो वो हर चीज को उतना कलर कर दिया गया मीडिया को कि या तो ये इस तरफ है या उस तरफ है, और उस वजह से कोई, अगर आप सच भी बता रहे हो तो आधे लोग नहीं सुनेंगे, आधे लोग अगर मैं झूठ भी बोल दूंगा तो भी सुनेंगे राइट कि संभव ने बोला है तो ये सही होगा, राइट, एब्सोल्युटली। अब तो वो मैं मिसयूज भी कर सकता हूँ, तो क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी तो है, तो अगर मैं गाली भी दे रहा हूँ अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से किसी को, तो हाँ ये सही कर, उसमें फैक्ट्स है कि नहीं है चेक नहीं करेगा कोई, बट इट शुड हैव बीन जस्ट अबाउट फैक्ट्स इन इंफॉर्मेशन। और तो ऐसे एक दो बार हुआ कि कोई मैं स्टोरी कर रहा हूँ और एक बार कुछ लिख रहा था सर्वेलेंस पे, तो ऊपर से कॉल आया कि मैंने आरटीआई लगाई हुई थी, तो उनका कॉल आया कि किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट के थ्रू, मतलब बहुत ही हाईली प्लेस्ड इन द सिस्टम, कि आप आओ मिलना है आपसे, एंड दे वर लाइक क्यों कर रहे हो ये स्टोरी, आप ये हटा लो, इट वोंट बी गुड फॉर यू, तो आप ये विड्रॉ करो आरटीआई। तो मैंने उनको प्यार से बैठ के बिल्कुल यही समझाया कि सर पहले भी मैंने किया है, जब दूसरी सरकार थी यही काम करता था, आप देख लो, अभी भी मैं ये कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं है मेरा, ना आई एम नॉट डूइंग, देयर इज नो पॉलिटिकल दिस थिंग, बिकॉज दे आस्क्ड, दे आस्क्ड कि इसमें क्या आपका क्या, हाँ आपका क्या मोटिव है इसमें, कोई मोटिव नहीं है, रोजी रोटी है मेरी, ये मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है, और ये मेरे को जाके भी अपने बॉस को बोलना पड़ेगा कि मेरी स्टोरी हो रही नहीं हो रही, मेरी तो तनख्वाह कहाँ से आएगी मेरी। He laughed and then he called his assistant and said कि इनको RTI का information दे दो ये। अच्छा। So it's as simple as that कि ये एक profession है and should be treated as a profession। Yeah. एक चीज़ बताइए, तो जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन, आई हियर यू, लेकिन ये जो कोर ट्रेट है क्यूरियोसिटी का, आर पीपल हु आर क्यूरियस अट्रैक्टेड टू जर्नलिज्म, or does journalism, the education in itself, develop that trait of curiosity? I think it has to be former। आपका मतलब पहले क्यूरियोसिटी होना तो बहुत ज़रूरी है,
अगर वो नहीं है तो फिर जर्नलिज्म एज अ ट्रेनिंग तो आपको नहीं कर पाएगा. सो दैट हैज़ टू बी देयर. I mean, people would go without that, but if you don't have it in you, then nobody can train it. So Right, that's, I think, the ingredient of. It can't be cultivated. It can't be cultivated. मतलब उसका basic तो वो होना पड़ेगा. So and then. And sustainable curiosity. ऐसा correct. नहीं कि थोड़ी देर के लिए होता है. Correct. हाँ, वो बहुत throughout, ज़रूरी है. हाँ. And I mean, then people also they don't have it, and then they get into it, then they lose interest, and then they do something else. तो वो भी है. But yeah, I think for a proper and for that matter, I think researchers किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन का सेंस बना रहे हो या उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, वो क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़रूरी है. जर्नलिज्म आपको उसको एक लेंस दे देता है कि आपको फ्रेम कैसे करना है अपनी क्यूरियोसिटी को, सवाल कैसे पूछने हैं, किससे पूछने हैं. और जब आपने पूछ लिए सवाल और आपने अपनी क्यूरियोसिटी उसको शांत कर लिया तो फिर कम्युनिकेट कैसे करना है. सो आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. वो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जा सकता है. कई बार ये कि हाँ कम्युनिकेट कैसे करना है, किसे करना है, किसके लिए कर रहे हो आप, उस हिसाब से फिर आपकी क्यूरियोसिटी और भी डेवलप होती है. तो ये आई फील इस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है. या So in your journey, I mentioned 3 institutions you have established. So the Reporters Collective, it produces investigations. Yeah. Land Conflicts Watch, that is producing a database. Right. That's evidence of land conflicts in India. Yeah. Nutgraph, you're actually creating research infrastructure for other people, including of course journalists. So there's a certain journey that you've taken, started with curiosity, and that curiosity has sustained, as you were rightly saying, research में भी वो curiosity है. So Reporters Collective, Land Conflicts Watch, Nutgraph, मुझे थोड़ा सा TRC का मोटिवेशन, रिपोर्टर्स कलेक्टिव का मोटिवेशन मुझे समझ में आता है from whatever I heard. Yeah. And I still want to ask you one question, but I'll ask that later about TRC. पर मुझे बताइए कि लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स वॉच या नटग्राफ जो आपने लेटर बनाया है, क्यों ये इंटरेस्ट आया कि डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को सही तरीके से कम्युनिकेट करना है, मतलब कलेक्ट करना है, पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं, फिर कम्युनिकेट करना है, ये दिमाग में क्यों आया? Yeah. So I'll answer that, but I just want to clarify one thing. Reporters Collective, of course, I was a co-founder, but then I moved on. I moved on in 2023 March, so it's now being run. There's a different team. I mean, I as a co-founder moved on. Of course, the rest of the founding team is there, and other colleagues are there, and they are doing their own great work right now. Absolutely. Many important stories they have put out. So I've been away from that for the past 3 years, but yeah, I'll talk about the journey, of course, coming back to the journey part. So I was working in one of the largest newspapers of India, and I was working on environmental stories. अभी जो जर्नलिज्म, अब मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा ऑन जर्नलिज्म पर कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है. मतलब जर्नलिज्म इटसेल्फ इज इन्वेस्टिगेटिव. मुझे भी ये टॉप बहुत weird. वो वियर्ड है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या और क्या करोगे आप जर्नलिज्म में. वही तो, वरना तो इन्फॉर्मेशन है वो, आप उसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख रहे हो. तो एक I with all respect to all the other journalists who do work, and I'm sure there is craft involved in writing, communication and putting it together, but हाँ कोर में वही है कि आप जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है उसको आप बता रहे हो. तो वो कई बार 3-4 लेयर डीप में चले गए तो वो थोड़ा उसको इन्वेस्टिगेटिव बोल देते हैं या रिसर्च बेस्ड बोल देते हैं, डीप डाइव बोलते हैं, या फिर अगर आपने एक ही लेयर में बोल दिया तो ठीक है वो भी रिपोर्टिंग हो गई. तो मैं उस तरह का काम इन्वायरमेंट पे करता था. माई लर्निंग हैज़ बीन एट CSE, Down to Earth magazine, where for 5 years I reported on environment from across the country. So I reported from 28 states on, and when I say environment, it's actually, and I'm just giving you context and we'll come to the question that you asked. So when I say environment reporting, मतलब हमारे बहुत सारे in a very
शैलो वो मूवमेंट्स में और स्पेशली इन एको चेम्बर्स और अर्बन स्पेसेस में एनवायरमेंट्स, फॉरेस्ट, टाइगर्स, वाइल्ड लाइफ, राइट वो ग्रीनरी से रिलेटेड हो जाता है, राइट? राइट राइट बट एनवायरमेंट इज अबाउट रिसोर्सेज। आपका धरती के रिसोर्सेज क्या हैं, जमीन के रिसोर्सेज क्या हैं, जंगल है, जंगल इज नॉट जस्ट ग्रीनरी, इट्स अ ह्यूज रिसोर्स ऑल्सो। वो रिसोर्सेज किसके लिए? लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, जो हमारी इस मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, लैंडलेस कम्युनिटीज, रूरल पॉपुलेशन, राइट? 400 मिलियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लैंड एंड रिसोर्सेज। तो चाहे वो फॉरेस्ट हो गए, ज़मीन हो गई, लैंड हो गया, कॉमन्स हो गए, वाटर बॉडीज एट्सेट्रा. So all that is linked to people. So then the whole idea of poverty elevation, livelihood, economic growth, वो यही सब रिसोर्सेज पे तो इंडस्ट्री भी चल रही है हमारी. आपको खनिज चाहिए, माइंस, मिनरल, कोल, ये सब चाहिए, उस पर माइनिंग हो रही है, उस पर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उस पर कंट्री की ग्रोथ हो रही है. तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हर चीज़ के उसमें कोर में है. एंड हाउ डू यू बैलेंस दिस होल डेवलपमेंट with environment, with people is the idea of environment. और वो ये मेरी लर्निंग, ये सब लाइक दिस ब्रिलियंट मैगजीन अनिल अग्रवाल स्टार्टेड डाउन टू अर्थ और CSE, वो उसका लेगेसी है. तो वहाँ पे मेरी वहाँ पे लर्निंग हुई 5 साल. फिर देखा कम्युनिटीज का इंटरसेक्शन. Did you have a particular region to cover, or were you doing it across I did India? across India. So सारे states में, I mean there were like learnings from say north east में जाके अलग तरह की learnings थी. महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में गए तो वहाँ पे जब आपने फार्मर सुसाइड्स का स्टोरी किया और ड्राउट कैसे अफेक्ट करता है, उसकी इकोनॉमी क्या है, नो ब्रोकर्स की लैंड वो करते हैं. वो भी अब ड्राउट तो पानी से रिलेटेड है. पानी जा कहाँ रहा है, किसके कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है. तो इट्स अ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज इज व्हाट एनवायरनमेंट इज. तो उस तरह का काम, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक एग्जांपल है, वही डाउन टू अर्थ में मैंने एक स्टोरी करी थी कि कोल वैसे तो नेशनलाइज रिसोर्स है हमारा, तो उसमें सेंटर का हक है, फिर वो ऑक्शन करता है कंपनीज को, राइट? तो लेकिन नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल प्रोविजंस हैं कि वहाँ पे जैसे नागालैंड में है, उनको उन ट्राइबल कल्चर और टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि लैंड और रिसोर्सेज पे उनका हक होगा. तो नागालैंड की सरकार ने बोला कि हम केंद्र सरकार को नहीं करने देंगे यहाँ पे माइनिंग कंट्रोल, हम करेंगे, उसका पूरा रेवेन्यू हम लेंगे, विच इज अ वेरी यूनिक केस. तो वो उसमें फाइट चल रहा था. लेकिन राज्य सरकार ने जब वो करना शुरू किया तो उसका फायदा, वहां पे अलग ही लेवल का करप्शन चल रहा था. वो रिलेटिव्स, पॉलिटिशियन के रिलेटिव्स को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जा रहे थे. और फिर वहाँ की कम्युनिटीज भी बहुत अवेयर हैं नॉर्थ ईस्ट में. वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आया है वो कम्युनिटीज की असर्शन से आया है ना. तो सरकार तो आपकी सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है. असर्शन ऑफ दैट राइट इज अबाउट द कम्युनिटीज. राइट तो कम्युनिटी बोल रही है कि तुम कौन होते हो, वो राज्य सरकार को बोल रही है कि तुम कौन होते हो, इस फाइट कर रहे हो, अच्छी बात है केंद्र से, पर इसको पूरा रेवेन्यू रखने वाले तुम कौन होते हो? अच्छा. हम करेंगे, कम्युनिटीज की कलेक्टिव करेगी कोल माइनिंग, और इसका पैसा हम रखेंगे. ऑयल से भी रिलेटेड, ऑयल माइनिंग का वही था. सो देन यू नो दिस वेरी 3-way, लाइक वेयर कम्युनिटीज स्टैंड, व्हाट इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट सिस्टम. तो ये स्टोरीज करी, उससे समझ आया बहुत सारा कि सो दैट्स व्हाई द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी अलग अलग एस्पिरेशन है, और उस एस्पिरेशन से देश को समझना और इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना. तो वो उस तरह के काम में कर रहा था, उसकी स्टोरीज लिख रहा था. अब उसके बाद देन आई मूव्ड ऑन एंड आई एम लाइक कि ये कर लिया, सीख लिया, अभी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में करेंगे ये सब. अच्छा. इम्पैक्ट के लिए. और उसमें फिर चीज़ें निकल के आती थी कि कहाँ पे वायलेशंस हो रहे हैं, कौन गलत कर रहा है, कहाँ पे कम्युनिटीज़ के लॉज की वायलेशंस हो रहे हैं एक्सेट्रा. तो इट्स लाइक ये थोड़ा और अगर हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो शायद उसका इम्पैक्ट होगा. So that's with that idea I went to mainstream media and then I was reporting on these issues etc. तो कुछ दिन तो चला वो. उसके बाद वो थोड़ा फिर लोग परेशान होना शुरू हो गए उस तरह के काम से. फ़ोन आने लगे ऊपर से कि ये इसके बारे में क्यों लिख दिया, उसके बारे में क्यों लिख दिया, ये कंपनी का क्यों लिख दिया, या वो क्यों हो गया ये. तो फिर वो स्टोरीज़ को स्कटल करने के लिए
दे से कि स्टोरी फिर पब्लिश नहीं हो रही थी, ये सब मेहनत करके लिखो आप और उस पर बैठे रहते थे, वो पब्लिश नहीं होते थे. सो यू नो, एंड दिस इज नॉट जस्ट माई केस, दिस नाउ आई थिंक इट्स सब जगह है. और वो सिर्फ उस अखबार जहाँ मैं काम कर रहा था वो नहीं है, वो सब जगह है, बहुत जगह है. आपको जो लग रहा होगा कि कुछ बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अखबार और वो सब है, वहाँ पे भी ऑड इवन चलता है कि एक दिन यहाँ ऑड कर दो, दूसरे दिन इवन कर दो, तो बैलेंस हो गया. कुछ लोग ये दोनों ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ बीच में चलते रहते हैं, तो वो आपको बिल्कुल ब्लेंड लगता है, पर उनका रेवेन्यू मॉडल कुछ और है. कुछ लोगों का रेवेन्यू मॉडल ये है, कुछ अखबारों का, कि हमको कुछ तो करना पड़ेगा तभी हमारी लीडरशिप बनी रहेगी, तो फिर वो 2 दिन वैसा करते हैं और फिर 2 दिन दूसरा इस तरफ कर देते हैं पॉजिटिव, तो वो कहते हैं हमने आपको भी खुश कर दिया, आपको भी खुश कर दिया. तो ये मीडिया का सिस्टम है, क्योंकि वही मैं कह रहा था कि रेवेन्यू मॉडल उसी पे चलता है. वो सरकारी एडवर्टीजमेंट से ही आपको वो मिलेंगे, आपके कॉन्क्लेव में, कॉन्फ्रेंसेस में, फिर आपको मंत्री जी को भी बुलाना है, और तो वो आए तो कैसे होगा. तो वो मीडिया का सिस्टम ही अलग है, वो जो होना चाहिए था वो नहीं है. Truth depends on the revenue model. On the revenue model, exactly. So in those constraints, वो तो समझ में आता है कि ये नहीं होएगा, बट आप उस समय ठीक है, बहुत जुनून है कि नहीं करना है, लड़ जाना है और अपनी कहानी के लिए लड़ना है, ये सिखाया जाता है जर्नलिज्म में. Right. तो हम कर रहे हैं वो सब, पता भी है कि नहीं इसके पीछे क्या है. बट अब उसमें होता है कि आपको कोई बोलेगा नहीं सामने से कि नहीं हम ये नहीं छाप सकते, एडमिट नहीं कर सकते ना कि हमारे पास फ़ोन आया है, या ये नहीं भी आया है तो आ जाएगा फ़ोन, एंड हम ऐसी सिचुएशन नहीं बनाना चाहते. तो ये आपको कोई एडमिट नहीं करेगा कि प्रेशर है. अब जैसे अगर आज के दिन अगर मुझे कोई संस्था चलानी है और मुझे कहना, बोल दूंगा यार यू नो, लेट्स नॉट डू दिस, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है. मतलब दिस इज हाउ, अभी ट्रूथ सीकिंग है तो भी ट्रूथ बोल दो, पर वो तो नहीं चल सकता ना, अभी बड़े मॉडल में नहीं चल सकता, आप कोई बोलेगा नहीं, तो उसमें बहाने दिए जाते हैं. बहाने क्या होंगे, इसमें डेटा नहीं है, इसमें आपका एविडेंस पक्का नहीं है. कैसे कह रहे हो ये कि वायलेशन हुआ है, तुम तो लॉयर नहीं हो. अगर तुम बोल रहे हो कि इस लॉ का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, अब जैसे एक देयर इज अ फेमस केस अबाउट नियामगिरी ट्राइबल्स इन उड़ीसा, वेयर मतलब ये तो बहुत ही फेमस केस है. वेदांता जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो वहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग कर रही थी और उसको सारे परमिट्स थे, लीगली सारे परमिट्स थे, ऐसा नहीं कि कुछ वैसे इलीगल हो रहा है, परमिट्स हैं. बट हमारा एक कानून है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, वो ये बोलता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन की ऑटोनॉमी है ऑन देयर ओन रिसोर्सेज एंड देयर पॉपुलेशन, आप उनको फोर्सफुली डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो. और अगर आपको उनको डिस्प्लेस करना भी है तो उनकी परमिशन, रजामंदी होनी पड़ेगी. ये हमारा वन अधिकार कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में बना था. बहुत स्ट्रगल्स के बाद आदिवासियों की पार्लियामेंट ने इसको बना दिया था. अभी वहाँ के आदिवासी उस पहाड़ को जिसमें बॉक्साइट है, नियामगिरी हिल, उसको वो सेक्रेड मानते हैं. इट्स अ सेक्रेड, दे वर्शिप दैट हिल. वो ऑलमोस्ट लाइक अवतार, राइट, वो उस तरह का मूवी, उसके पैरेलल्स ड्रॉ करे जा रहे थे जब वो स्टोरी हो रही थी. तो उन्होंने मना कर दिया. अब वो फिर केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया तो कोर्ट ने बोला कि अब कानून तो बोलता है कि दे हैव द राइट टू डिसाइड. तो फिर उन्होंने बोला कि वहाँ पे 13-14 एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है विलेजेस थे, उन्होंने बोला था कि आपको ये प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, हर एक ग्राम सभा के पास ले जाना पड़ेगा और आपको उनके हियरिंग करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू गेट वेदर दे अग्री टू इट और नॉट. एक के बाद एक सारी ग्राम सभा ने ना बोल दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रहा था. उस चक्कर में प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अभी तो बोल दिया और कोर्ट में भी आ गया. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उसमें अपील फाइल करी कि नहीं, ये लॉ का इंटरप्रिटेशन है कि उनकी कम्युनिटीज हैव द राइट टू डिसाइड और राइट टू वीटो, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन था, आप इसको रिव्यू करो. तो मैंने ये स्टोरी प्रपोज करी कि ये कितना गलत, और क्योंकि जब ऐसे होता है तो वो इस तरह के डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं कोर्ट में. वो मेरे हाथ में लग गया एफिडेविट उसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है. अभी ये लिखेंगे कि देखो कोर्ट ने बोल दिया है फिर भी दे रहा है, पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ को भी वो बोल रही है कि वो ट्राइबल्स के अगेंस्ट जा रही है कि ये करना है. तो आई थॉट दैट वाज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी, आई प्रपोज्ड इट. तो उसमें ही अभी प्रॉब्लम हो गया कि अच्छा ये तो नहीं थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, है ना. और वेदांता अब ये भी है कि अभी वो कोशिश कर रहे हैं एक और कि खुल जाए शायद ये माइन किसी भी तरह से. तो अब वो स्टोरी आएगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा जो भी है. तो उसमें 4 बहाने कि नहीं
यू आर नॉट अ लॉयर, हाउ आर यू रीडिंग एफिडेविट, इस तरह की चीजें हैं, विच इज वेरी लेम. मतलब यही तो करते आ रहे हैं ना, इतने जर्नलिस्ट को बोलते हैं कि दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, वो बोलते हैं. बट अगर आप करते आ रहे हो तो इतना तो समझ जाते हो ना कि एक लॉयर से आप वेट करा के ही ला रहे हो. Absolutely. आप प्रपोज कर रहे हो, ये लॉयर से समझ के प्रपोज कर रहे हो, और उसमें लॉयर्स वगैरह वेट करके रखेंगे. लाइक दीज आर लेम. तो वो एक एग्जांपल है, ऐसा ऐसे बहुत सारे केसेस में होता था. सो देन सो दिस इज वन कि आपका एक्सपर्टीज नहीं है, डेटा नहीं है, एविडेंस नहीं है. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जो विच इज आई थिंक ऑल्सो रिलेट टू आवर कॉन्वर्जेशन, कि उड़ीसा के जंगल में कुछ हो रहा है, आदिवासियों को कुछ हो रहा है. हमारी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन दिल्ली, Why would they care? व्हाई वुड दे केयर? हाउ डज इट मैटर टू देम? क्यों करना है ये स्टोरी? नहीं, इतना रिमोट में कुछ हो रहा है, इसकी स्टोरी क्यों करना है? सो देन आई थॉट कि अच्छा, सो व्हाट इज इट दैट दिस पीपल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, व्हाट डू दे केयर अबाउट? अकॉर्डिंग टू देम it cares about money. It cares about growth, country's growth. It cares about what else does it cares about? Politics, economy. ये चीजें हैं, इसमें भरे रहते हैं आपकी न्यूज़पेपर्स, होना भी चाहिए. मैक्रो ट्रेंड्स हैं, तो दे केयर अबाउट. इंटेलेक्चुअल क्राउड है हमारा, कोट एंड कोट, तो वो मैक्रो ट्रेंड पे बात करता है. माइक्रो नहीं करना है इतना, क्या है. It's like, अच्छा ठीक है. So then I thought कि you know, even if this is the argument, it makes sense. Actually, that might be true. So how do I get these people to care about these issues? Right. So one, that I need to get this out. So I need to convince my editors. And second, to actually get people care about this. So I thought that okay, so then we need to look at macro. पर वो मैक्रो में अभी कौन डिसाइड कर रहा है आपके? Consultants of the world, which create dashboard which are top down. True that. Right? वो उसी पे आपकी पॉलिसीज बनती है, वो प्रेजेंटेशंस होते हैं, यू गेट दीज हाई फ्लाइंग कंसल्टेंट्स, वो डैशबोर्ड बना के उसी पे डिसीजन मेकिंग होता है. वेयर डज द डेटा कम फ्रॉम दोज? लाइक फ्रॉम दीज वेरी लाइक मैक्रो टॉप डाउन डेटा सेंटर्स, उसमें एनालिसिस होता है. जमीन का डेटा कहाँ है, ग्राउंड में क्या हो रहा है उसका डेटा कहाँ है, उसके बारे में अगर हम एक चीज बोलेंगे तो माइक्रो करके और एक आइसोलेटेड केस बोल कर देंगे. सो इट्स लाइक ओके, सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग that the issues of the environment and resources are very much intertwined with the political economy of the country, of its developments, industry, resources, poverty, right, livelihood. तो जब ये सब चीज पे आपको केयर करना है, तो इसमें हम ये इंडिविजुअल केसेस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन कैसे आप ऊपर उठाओगे, ताकि ये ऊपर जो प्लानिंग हो रही है और पीपल केयर कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म कर पाओ. So at that point itself, when I was working there, I thought that maybe I need to do a story by building a database of these conflicts that are happening across the country. So when tomorrow the question is asked कि why should someone care about this case, I would be able to say कि ये एक चीज की बात नहीं है, एक केस की बात नहीं है. This is happening across the country, और उस इतनी जगह पे हो रहा है, उसका स्केल इतना है, उससे इतने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उससे इतना इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट हो रहा है. आपको इन्वेस्टमेंट की चिंता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होने से सिर्फ ये थोड़ी है, आपका प्रोजेक्ट तो कैंसिल हुआ ना, वेदांता नहीं जा पाया. क्या प्रॉब्लम थी वहां पे कि आपने ये चीज को पहले से नहीं ध्यान दिया कि वहाँ कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनका असर्शन है. कुड देयर बीन अ डिफरेंट मॉडल कि जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट सफ़र नहीं करता अगर आप ऐसे नहीं करते तो. और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत जगह हो रहा है. कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, कोर्ट में जा रहे हैं, उससे आपका कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है. सो इट्स नॉट गुड इवन फॉर द इन्वेस्टमेंट्स और फॉर प्रोग्रेस. तो और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये चीज़ों का नीचे ध्यान नहीं दे रहे हो. आपको लगता है कि यू कैन जस्ट राइड रफ शॉट ओवर कम्युनिटीज वॉइसेस और देयर एजेंसी. बाद में दे आर वेरी कॉग्निजेंट. अगर आपके लॉ में लीगली लिखा भी नहीं है, दे आर कॉग्निजेंट ऑफ व्हाट देयर राइट्स आर सपोज टू बी. तो प्रोटेस्ट करेंगे. प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? अब प्रोटेस्ट से आपको भी नुकसान है, उसको भी नुकसान है. So I thought that if we can show it to that scale, then there would be, you can't make these ignorant arguments, and you would also be forced to listen and forced to think कि क्या हो रहा है. अभी डेटा दिख रहा है, मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है, उनको वही दिखता है. That's the language they understand. Then let's show it to them in that language. तो उस आइडिया से वो एक डेटाबेस बनाने का एक आइडिया आया. वो डेटाबेस उस समय तो सिर्फ यही था कि मैं
खुद के लिए समझने के लिए और उसको आर्टिकुलेट करने के लिए एक ये डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ और उससे एक शायद एक रिसर्च प्रोजेक्ट या स्टोरी करूँगा. बट वंस दैट स्टार्टेड हैपनिंग, द ब्यूटी अबाउट डेटा इज कि वो जब एक साथ आना शुरू होता है ना, तो उसमें फिर पैटर्न्स फॉर्म होते हैं. तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. राइट. उसमें बहुत सारे रास्ते खुलते हैं. उसमें बहुत सारे रास्ते खुलते हैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने के. तो वो फिर होना शुरू हो गया उससे. तो ये 2006 की बात है, 2016 की बात है जब शुरू किया था. नाउ वी आर इन 10th ईयर ऑफ दैट वर्क. तो वो फिर अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग समझ और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं, फिर उसमें तो ये है कि अब उस अप्रोच से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो. ये कि ज़मीन से आप डेटा इकट्ठा करो और उसका फिर एक कंसोलिडेट करो और माइक्रो से मैक्रो लेवल पे उसको समझना है. तो वो पैटर्न आप दूसरे सोशल इश्यूज़ में भी आप कर सकते हो. तो फिर उस आइडिया से फिर हमने नटग्राफ सोशल डेटा लैब, जो हमने बोलते हैं कि इट शुड बी कॉल्ड अ सोशल डेटा लैब. हम डेटा ज़मीन से इकट्ठा करेंगे और उससे फिर हम समझें सोसाइटी को, सोशल इश्यूज़ को, और वो डेटा कैसे इन्फॉर्म कर सकता है पॉलिसीज़ चेंज थ्रू दैट रिसर्च. एंड देन इट हेल्प्स अदर रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, कि उनके काम में भी वो डेटा मदद करता है. तो so that's how this whole journey of Land Conflict Watch and then expanding into NutGraph happened. But there is also another sort of way to approach it, is कि इन्हीं skills का अगर हम उपयोग करके एक इंफॉर्मेशन को थोड़ा समझने के हिसाब से कि ये हो रहा है, अच्छा आप अपने प्रॉब्लम बताओ, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो ये, what is your incentive और what is your motive to not do things. कुछ तो जहाँ करप्शन है और वो सब है, वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता. But there are certain limitations. I mean, bureaucracy has its own limitations. It works on in certain sort of this thing. Policy makers have their own limitations. उस limitation के अंदर भी क्या कुछ कर सकते हैं? There are good people everywhere. तो उनके लिए क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हो information that they can use to make that change happen? और bring them to the table with other stakeholders. अगर communities के issues हैं, वो क्या उनके issues को सुनने के लिए can you bring the other stakeholder together? I think that's a space which is very important. और उस space में करते हैं लोग, काम कर रहे हैं, consultants कर रहे हैं, civil society काम करती है, NGOs काम करते हैं. उस space में can I bring this skill of using these skills to synthesize the information or create information that can help that discourse, is I think the space that I am working on right now with the NutGraph Social Data Lab. Yeah, and learning from, I think, all this journey and these experiences. I had 10 thoughts while you were talking. ठीक है, and I'm just thinking कि कौन सा thread pick करके मैं आपसे continue करूं. ये जो रेवेन्यू मॉडल वाली बात वो बार बार घूम करके आ रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात. एक चीज़ ना स्टार्टअप वर्ल्ड में, चूंकि मैं स्टार्टअप वर्ल्ड से हूँ, बहुत कॉमन है. फाउंडर्स के लिए कहा जाता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी. Right. ठीक है, कि फाउंडर्स रिस्क लेते हैं. और मुझे बहुत बार लोगों ने जब मेरे स्टार्टअप्स के बारे में कभी कुछ पूछा है कि कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा है, हंसते हुए कहा है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक थिन लाइन है, समय बताएगा. ठीक है, बट द रिस्क दैट स्टार्टअप फाउंडर्स टेक, इट्स अबाउट जो आउटकम होगा, इट्स अबाउट पर्सनल फुलफिलमेंट. Yeah. राइट. जो रिस्क, जिस तरह के रिस्क की आप बात करते हैं या आपके स्पेस में जिस तरह का रिस्क है, वो रिस्क पर्सनल, वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस वाली बात है ही नहीं. वो कुछ और ही रिस्क है. ठीक है, उसमें अब यू सेड कि हमने स्टोरी कर दी, दैट इज इनफ, मतलब सेटिस्फैक्शन. उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा इज सेकेंडरी. बट राइट नाउ यू वर्किंग ऑन कि चलो इम्पैक्ट लाते हैं. you're saying कि moving on from just reporting things, चलो actual impact लाते हैं. And one of the things अभी मुझे समझ में आया, लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स वॉच और नटग्राफ अभी मुझे बहुत बेहतर समझ में आया. ऐसा जनरल मुझे समझ में आया था कि डेटा जर्नलिज्म है, डेटा पैटर्न्स, ब्ला ब्ला. लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि एक इंडिविजुअल न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ना, हो सकता है वो न्यूज़ रिपोर्ट, जैसे मैंने धूलीचंद वाला जो कहानी बताया, हो सकता है दैट इज़ अबाउट वेलफेयर
मतलब उनको पेंशन नहीं मिला, उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो ये आपने स्टोरी बताया, आपने कुछ हज़ार लोगों के, बहुत हज़ार लोगों के बारे में भी उसमें बताया। लेकिन आपने आज ये नोटिस किया, कल किसी और रिपोर्टर ने कहीं कुछ और नोटिस किया, कल किसी और जर्नलिस्ट ने कुछ और किया, कहीं कहीं डिस्कवरी हुई, कहीं छोटा न्यूज़पेपर में छोटा कॉलम आया, कहीं किसी से आपने बात की तो कुछ और डिस्कवर किया। बट when you bring all of them together, then you start noticing that all the algorithms, all the tech that we are bringing in is affecting the welfare of our citizens, right? तब आप वो पैटर्न्स, वो जो आपने मैक्रो ट्रेंड्स की बात की कि मैक्रो पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टोरीज तो बेस है, वो एक न्यूज़ साइकिल में आएगा, कुछ संवेदनशील लोग सोशल मीडिया में आउटरीच करेंगे, बट वो 48 आवर न्यूज़ साइकिल के बाद गायब हो जाएगा। Correct. What you are doing is actually sustaining that, ensuring कि हम सारा डेटा, whether or not it becomes news does not matter, the data I've captured with all the researchers, with all the journalists that you're working with, you making a database, and you're showing, you're drawing insights from it, you're creating a dashboard for everybody to gain from. That does not necessarily mean journalists. मुझे पहले I had limited understanding कि ये journalist use करके, but नहीं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी use कर सकता है कि भाई मुझे इस region में कुछ industry बनाना है, but this is the pattern that I've observed, so I should, if I were to create something, these are the factors I should take in before doing this. Correct. क्योंकि clear है over the last 10 years of land conflicts watches exposure, this is what I understand about India's relationship with industries and natural resources and blah blah. मतलब Correct. बहुत ही basic line बोल रही हूँ मैं, but now I understand it better. This is not a journalist, this is not research infra. This is NatGraph is not research infra, which is what I started with. It's way beyond that. It can help us startup founders establish something. कि भाई this is, because land conflict watch is one thing, NatGraph will have is one project under NatGraph. Though land conflict watch is how you started. Correct. But then you created NatGraph. उसके अंदर अब बहुत सारे projects आएंगे. Absolutely. Right? That's exactly how it is. Yeah. And as a startup founder also, I can now go to one of your projects and say, this is what I'm thinking now, this is what I observe, this is what they've shared with me. I have a fantastic database, a dashboard to look at the insights that they have shared, and think यार ये work करेगा कि नहीं. Right. Right? मतलब one of the terms very commonly used in the world of business is market research. Right. But पहला तो वो triggered होता है by your need, आप जो बनाना चाहते हो. Correct. And this is beyond market research. This is the reality on the ground, जो कि readily available हो रहा है. Right. Right? जो आप पिछले 10 मान लीजिए, मतलब 10 साल is one example, but मुझे मिल सकता है. तो मतलब अब मुझे NatGraph बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. And this is absolutely fantastic. So, Nay, I'll give you an example of how exactly this is used and this happens. I mean, you're Sure. absolutely on the right. I mean, saying you read it right. I'll give you an example of, say, renewable energy sector industry, right? This is a huge upcoming sector. Immense amount of investment is going because at the macro level, at the international level, India has its commitment on renewable energy deployment and net zero targets, etc. That so much renewable energy has to be deployed, and because of that, there are lots of schemes, subsidies, and exemptions in permits, etc. So there've been investment now, but renewable energy, say solar and wind projects, utility scale, they require large swaths of land. वो इंडिया में कहाँ से आएगी ज़मीन इतनी? तो अभी लैंड तो लेना है. तो they started taking land. Now there are a lot of exemptions from the government also, state governments, for them कि आपको इतना सारा EIA, Environment Impact Assessment और Community Consultation, इस सब में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारे वेस्टलैंड है, वो कोट एंड कोट वेस्टलैंड बोलते हैं, जो सरकारी ज़मीन होती है. इतनी सारी सरकारी ज़मीन पड़ी है यहाँ पर, ये हम आपको असाइन कर देते हैं. Lots of startups, lots of new investors saw opportunity in this. They got into it. They started building projects. Then they realized कि जो सरकार ने वेस्टलैंड बोल के हमको ज़मीन दी थी, उस पे तो लोग यूज़ करते हैं उसको. वो ग्रेजिंग लैंड है फॉर चरवाहों के लिए, ग्रेजिंग कम्युनिटीज़ के लिए. दिस इज़ ह्यूज ग्रेजिंग लैंड फॉर marginalized communities like Dalits and others who are landless or who have very marginal land. वो उस पे या तो कल्टीवेट करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, सस्टेनेंस के लिए,
या फिर रहने के लिए घर नहीं है तो सरकारी ज़मीन पर ही वो करते हैं. दिस इज़ अ वेरी सिंपल टर्म्स आई एम सेइंग. This has, I'll give you a little more context to it, कि it has many more layers to it. For communities and people on the ground, grassroots realities is that these lands, which are in the records as government land and called wasteland, are actually commons, common property resources used by communities traditionally across India. So that's what I say when, like, you know, knowing the country through data and what happens in grassroots. तो लैंड हमारे यहाँ कोई भी लैंड वेस्ट नहीं होता. वेस्ट लैंड कहाँ से, इंडिया में कहाँ से वेस्ट लैंड आएगा? आप बोलो, इतनी पॉपुलेशन है और इतने लोग हैं, लिमिटेड लैंड मास है, तो कुछ भी वेस्ट लैंड नहीं हो सकता. इसको वेस्ट लैंड इसलिए बोलते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में क्योंकि इट्स अ कॉलोनियल मिसनॉमर एंड हैंगओवर कि जो प्राइवेट ज़मीन नहीं है उस पे सरकार को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता था. प्राइवेट ज़मीन पे रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो जो कॉमन्स हैं उसको बोलते थे क्योंकि इससे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, ये वेस्ट है, वेस्टलैंड है. और वो रिकॉर्ड्स में आज तक वेस्टलैंड में आ गया है वो. अभी जब वो उसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में देखा जाता है तो सोचते हैं कि ये खाली पड़ा लैंड है, वेस्टलैंड है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है. वहां जाके किसी ने देखा नहीं, वहां जाके किसी ने अब इंडस्ट्री वालों को तो और नहीं समझ आता. They don't look into all these things. So now they have so many conflicts. So many of these projects are stalled because of protest on the ground. Communities have gone to the courts and said कि ये तो हमारी ज़मीन थी, इस पे हमारे हक हैं, पुराने ट्रेडिशनल वो हैं, उस पे कैंसिल हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेवलपर्स को भगाया जा रहा है गांव से, गांव वाले उनको वो कर रहे हैं. So costs are escalating for many of the. We did this analysis of 10 projects around renewable energy conflicts and then came out with this, that this is what is happening. And now the developers and the industry know, they are listening. They're saying, okay, now we are not going to take this on face value. Why don't you do the proper survey on the ground and tell us? And now the industry are investing in proper survey on the ground. कि पहले हम कमिट करने के पहले और ये ज़मीन फाइनलाइज करने के पहले एक्चुअली पता करेंगे कि इस ज़मीन के लैंड यूज़ हैं क्या. एंड लैंड यूज़ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन इंडिया. सो दैट वी हैव अ डैशबोर्ड फॉर दिस, जस्ट दिस. There's 40 renewable energy projects, why they are stalled, why they are in conflict, what are the underlying reasons, collected data from the ground, these are the things. Now, this should inform the further future deployment of the renewable energy so that people do not suffer on the ground, you also don't suffer. So that's that. So this is a dashboard. Absolutely. So what I'm saying is, and this has to be very interdisciplinary also. Journalism is one discipline. But then there is research, then there is policy, then there is law. And I feel that a country like India, for any, this is my personal belief and my experience also, I think for change to happen, there has to be interdisciplinary work. In research, in communication, in policies, a lot of interdisciplinary work is required. A lot of these disciplines need to come together and sort of then make sense, which is what we try. And data is very good to bring disciplines together. So we bring data from all disciplines together, make sense of it, and then inform everyone. And everybody sort of listens. So yeah, that's what the work that we're trying to do. I mean, as I said initially, that journalism is one discipline. It's seen in a certain way. It is very important. It would have been even more impactful and important and flourishing if it was seen as a profession, because it's not, so it's even further diminished its space. So then I feel that we have to also innovate models of impact and models of change. And in the context that we work in the systems that we work in, considering everybody's motives, everybody's, what makes people move to do things. Once you know that, then maybe you can intervene in that space. So yeah, that's how I look at it, this work. Yeah. I was thinking one thing कि generally बहुत चीज़ों पे हम कहते हैं कि somebody should do something about it. Yeah. Right? So you're definitely someone who says that somebody is me. I don't know about that, but yeah. I mean, in context, in certain spaces, the reason you're doing it because somebody has to do it. Yeah. Or I like it. I mean, of course, that is not hurt. It's only a hindsight thought. Yeah. You did not. You started with curiosity, clearly. Yeah.
लेकिन अभी अभी द यूजफुलनेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग Yeah. makes me say this. You may not say this about yourself, but I'm just saying this about you because what you're creating is extremely useful. मुझे ना एक बहुत weird सा बात याद आ गया. So a few years ago, we were doing some conversations in Loudest. ठीक है, so one of the conversations was in Kolkata. It was about regionalism. ठीक है, वर्सेस पैरोकियलिज्म, रीजनल प्राइड वर्सेस पैरोकियलिज्म, इस तरह की बातें थी. खैर कॉन्वर्सेशन इधर उधर भटका. आई रिमेंबर वन पर्सन सेइंग यू आर टॉकिंग अबाउट दलित्स एंड सम न्यूज़ रिपोर्ट्स. सो वन लेडी अचानक से वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना क्या रेप रिपोर्टिंग करते रहते हैं, क्या करेंगे हम जान करके इतना रेप्स हो रहा है. ठीक है, तो she was like absolutely frustrated. हाँ, कि क्यों, क्या करेंगे सच्चाई जान करके क्या करेंगे. ठीक है, और मुझे लगा कि भाई मतलब wouldn't that be the first step about bringing a change? And how can you be like close your eyes to everything happening? नहीं कुछ नहीं सुनना है, कुछ गड़बड़ नहीं है. Life is all ये. I had a point to make. But do they want to? I mean, do they want to be the change? They don't want to. Not at all. Yeah. I was actually उस समय I was scandalized by that statement. मतलब मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी. And I'm still not over that statement. तो मैं वही sorry आपका point है, पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतनी वो जैसे कहते हैं ना भांति भांति के लोग रहीमन इस संसार में, भांति भांति के लोग, which I feel I am coming to that realization more and more as I see things going from one point to another to where we have come now today in our country. वो ऐसे कई जो जैसे क्या बोलते हैं उसको, और इवन ऑन कम्युनल राइट, वो कहते हैं कि जो लोग छुपे हुए वो थे बिगट्स, वो अब बाहर निकल के आ गए क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अब एक्सेप्टेबल है. तो पहले तो पता ही नहीं था ना हमें कि इस लेवल पे लोग हैं, और वो सब खुल के बोल रहे हैं, सब खुल के ये चीज़ों के बारे में बोलते हैं, कास्ट, रिलीजन और इस सब के बारे में. इट हैज बिकम सो नॉर्मलाइज्ड. तो मुझे भी स्कैंडलाइज होता है जैसे आप ये बोल रहे हो. तो पर अब है अगर, और शायद वो ज़्यादा संख्या में भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि पहले हमको लगता था कि नहीं अच्छाई और बुराई बराबर है, या अच्छाई हमेशा बाहर बड़ी होती है. Now I don't know anymore because वो इतने तरह तरह के लोग हैं, and I think the acceptance is what probably has given me some peace कि दुनिया ऐसी है और उसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, उसमें हमें जो खुशी मिल रही है हम वो कर सकते हैं. And that's what I actually feel. So that's why when you say कि नहीं, I also like come to realization कि ये this is more philosophical at like my personal level, जो हम सोचते हैं और ये सब, कि वो एक समय था और एक जब था कि हाँ ये बदलना है, ये चीज़ें करनी है, वो क्रांति लानी है, लड़ जाना सबसे, वो होता है एक एज में, और उसका लेकिन प्रेशर भी बहुत होता है. और जब सिस्टम्स उस सपोर्टिव उसमें नहीं हो ना, तो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू. काम तो आप करोगे, वही करोगे, वो आज भी मैं सो दैट देयर इज अ लाइन यू ड्रॉ कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है चीज़ों पे, सच्चाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो भी नहीं करना है. पर प्रेशर क्यों लेना, अभी नहीं लेना. सो सो द इवन टू फील लाइक कि बदलाव लाना है या नहीं लाना है या कैसे होगा, इज एन आउटकम दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल नाउ विथ हाउ वी हैव सीन थिंग्स, एंड लेट इट बी दैट वे. I think your job is to like be honest to yourself, and I mean that's what I feel जब सोच रहे थे हम कि अभी क्या कैसे हो रहा है, तो and that has given me a lot of peace of mind कि आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो. अब बदलाव आएगा नहीं आएगा क्या है वो अलग बात है, और and do it well. I mean, do it in a way कि ठीक है, दिमाग भी लगाओ उसमें कि ठीक है चल भी पाए, सस्टेनेबल भी है, और इस सिस्टम में जो है उसके साथ साथ आप काम कर सको, उसमें जितना लोगों के साथ मिलके काम कर सको, जितना लोगों से कर सको तो करो, सो दैट इट यू एंजॉय डूइंग दैट, एंड डू नॉट फील कि इट्स ओनली टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ यू. यू हैव टू फुलफिल योर लाइक सेल्फ कंटेंट ऑल्सो. मुझे ना पहले एक चीज़ लगती थी, अभी मुझे समझ में आया कि वो काफ़ी नाइव सोच है. पर पहले मुझे लगता था कि कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है. ठीक है,
फिर समझ मतलब ये सवाल था हमेशा कि कुछ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों को पता नहीं है। फिर लगा कि नहीं, लोगों को पता होता है तो भी उसकी परवाह नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। और है कि जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है वो लोग या तो कंपैशन फटीग में चले गए हैं या फिर जो भी है, फ़र्क पड़ने पे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आउटरीच कर देते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता। और ये भी समझ में नहीं आता ना कि जिम्मेदारी किसकी है। मतलब does the everyday person need to step up and do Yeah. things and do what? Because countless चीज़ें हैं, countless areas of action है, तो कुछ करना है या कुछ भी नहीं करना है अपनी सीमित ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ही फोकस करके चलो। तो एक चीज़ जो मैं आपको, मुझे एक्चुअली मैं पॉइंट भूल गई जो मैंने नरेट किया आपको इंस्टेंस, वो मैं भूल गई क्या पॉइंट था, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि वो थोड़ा सा मुझे शॉकिंग स्टेटमेंट लगा था, बट कंपैशन फटीग तो बहुत रियल है। हाँ, कि क्योंकि इतना दिखता है कि आप फिर कोई आँख कान बंद ही कर देते हैं कि जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो लोग हम लोग माइक और स्टेज लेके बैठे हैं उनको बहुत चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कंफर्टेबल हैं बहुत तरीके से, बाकी चीज़ को हम अदर कर देते हैं। मेरी लाइफ में इफेक्ट नहीं कर रहा, और बोल भी हम ही रहे ना। क्योंकि वो जो वहाँ पे आप जिनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आकर के बोल ही नहीं रहे, उनको कोई ना मंच मिला है ना माइक मिला है। खैर, मैं अभी बहुत दूसरी जगह पे जा रही हूँ। मुझे आपसे एक चीज़ पूछना है, विच इज़ योर वर्क अराउंड AI अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। एंड दूसरी जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपने अभी क्रिएट किया है, विच इज़ व्हाट्सएप ट्रेंड ट्रैकिंग। तो मुझे ये दोनों चीज़ अब मुझे समझाइए कि व्हाट आर दीज थिंग्स एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो मैं आता हूँ इस पे, बट आई थिंक दैट वाज, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू लिटिल बिट ऑन दैट प्रीवियस थॉट दैट यू वर सेइंग। उसमें आई थिंक I come from theater background, by the way. अच्छा, हाँ, okay. मैंने कॉलेज में और इनफैक्ट आई वांटेड टू कंटिन्यू एज एन एक्टर, बट वो ये जर्नलिज्म हो गया। सो was very intensely involved in theater, and I bring that example, this analogy from theater, कि उसमें वो एक टीम होती है ना, उसमें सबके अलग अलग किरदार होते हैं। वो इंसान रियल जिंदगी में कुछ और होता है, जब वो स्टेज पे जाता है और वो अपना काम कर रहा है, उसका एक किरदार है, उसकी ये भूमिका है, उसके ये डायलॉग हैं, और वो जाके वहाँ, उसका पता है उसका इतना ही है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। वो डायरेक्टर भी है उसमें, फिर एक वो स्टेज पे नहीं है पर उसका एक किरदार है कि उसको डायरेक्ट करना है। वो एक लाइट वाला ऊपर बॉक्स में बैठा रहता है, वो लाइट को पूरा वहां से करता है। वो अगर थोड़ा गड़बड़ करेगा तो वो एक्टर की वो खत्म, उसका गड़बड़ हो जाएगा, परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा अगर उसने लाइट ढंग से नहीं करी। म्यूजिशियन ने राइट टाइम पे अगर क्लू नहीं दिया म्यूजिक का, तो वो अगेन एक्टर का वहाँ पे परफॉर्मेंस जो ऑडियंस को देख रहा है बिगड़ जाएगा। सो इट वर्क्स इन अ सिंक्रोनाइजेशन, और सबका अपना अपना रोल है। सो आई फील कि अब चेंज लाने में भी सबका अपना अपना रोल है ना। उसमें हर सिस्टम का एक रोल है। मेरा, देयर कुड बी अ रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, उसका अपना रोल है, which is a very important role. While I have probably would have come across as very cynical about journalism, etc., because I have moved on from that. I didn't mean to say कि जो हो रहा है वो important नहीं है। वो नहीं होगा तो फिर तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। So it is important. जितना भी truth हो रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए, और वो है, and like there are reporters and journalists and editors in their limited sort of space. They are doing brilliant work. वो important एक रोल है। फिर वही कि अब उस जर्नलिज्म के रोल को फिर आगे कौन करेगा, वो फिर जुडिशरी है, सिस्टम्स हैं, आप और हम जैसे आप कम्युनिकेटर हैं, एक्टिविस्ट का अलग रोल है, वो अपना काम करते हैं ना। वो एक्टिविस्ट सच में एक्टिविस्ट हैं जो ग्राउंड पर हैं, ना कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बहुत सारे जर्नलिस्ट अभी हो जाते हैं। और अब एंटरप्रेन्योर्स का उनका अपना रोल है। तो सबका अपना है ना। वो उससे ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकता ना। वो एक्टर, वो फीमेल एक्टर का लीड या वो म्यूजिक वाले का काम जंप करके नहीं कर सकता वो। तो वो अपना काम कर रहा है। नाउ इट्स अप टू द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। वी कैन ऑल वर्क ऑन
मेकिंग द सिस्टम अवेयर कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, प्लीज करो ताकि मैं भी अपना काम कर पाऊं, राइट? आई like I said, many journalists would have done great work if the rest of the system was working. Right. And similarly for what you're saying कि आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें शायद आप नहीं कर रही हो या मैं नहीं, तो आप नहीं कर सकते ना दूसरे का काम। आपका जितना है आप उतना ही कर पाओगे, जितनी आपकी रोल है, जो भूमिका है, जो आपने डायलॉग अपने लिए लिखे हैं वही बोलोगे। सो आई फील दैट ऑल्सो हैज बीन वन सॉर्ट ऑफ थॉट फॉर मी कि आप इतना ही कर सकते हो, और उसको भी आई डोंट फील लाइक कि वो कुछ बहुत हो सकता है वो रिलेटिविटी में कि हाँ ठीक है मैं इस इंसान से ज़्यादा कर रहा हूँ, बट इफ़ आई से आई रिपोर्ट ऑन, लाइक आई सेड, एट द कोर ऑफ इट इज़ द कम्युनिटीज़। वो जिस तरह उनकी जो स्ट्रगल्स हैं, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो सर्वाइवल के मैकेनिज्म्स हैं, असर्शन है उनकी, जो क्लैरिटी है, जिस लेवल पे वो करते हैं, उसका तो ये कुछ भी फ्रैक्शन नहीं है। हम तो उससे इंस्पायर होके कुछ करते हैं, उससे इंस्पायर होके उसको सिंथेसाइज करके उससे सीख के थोड़ा सा खुद सीखते हैं, अपने अंदर वो जज्बा लाते हैं और उसको थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं। जब व्हेन आई गो विजिट द फील्ड, आई सिट लाइक लिटरली अ स्टूडेंट एंड फील सो एम्बेरेस्ड एंड ऑकवर्ड कि अभी मैं कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़ ना बोल दूं इन लोगों के सामने, और आई शुडंट बी एज एन आउटसाइडर कि ये आ रहे हैं, और जबकि उन्हीं के से सीख के और हम उस काम को कम्युनिकेट करते हैं और उससे दूसरे उनको करते हैं, तो उनकी समझ, उनका असर्शन, अंडरस्टैंडिंग राइट्स का, एनवायरनमेंट का, सोसाइटी का बहुत अलग है। अलग नहीं मतलब अलग, बहुत स्मार्ट है वो, और उससे क्लैरिटी आती है उसको सीख के। तो सो आई थिंक यार द रियल एंड इवन क्लाइमेट का जो उन पे इम्पैक्ट हो रहा है वो डे टू डे में, और से मिस गवर्नेंस का जो उन पे इम्पैक्ट होता है डे टू डे में, वो उनकी अपनी रोज़ की फाइट है। तो हम जो तो अपने फिर भी बहुत कंफर्टेबल स्पेस में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अपने काम कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो हैं सबके अलग अलग रोल, एंड आई फील कि उतना ही हम कर पाएंगे। वी कैन प्रॉब्ली विश कि पूरा सिस्टम एक साथ सिंक में काम करेगा कभी। कमिंग टू AI अकाउंटेबिलिटी एंड WhatsApp Watch, yeah. So yeah, I mean, as part of my journalism, I've been reporting a lot on technology, how it's evolving and how it's impacting society, right? तो उसमें Pulitzer Center का when they launched their AI accountability fellowship, that's when I got this. I think it was 2 years ago, 2022, and that's when the threats of AI or irresponsible AI were becoming like very obvious and was being discussed. So the idea has been that how do you make AI accountable? In that project, you started with Duli Chand's story. So that story was part of that project, AI accountability project. Okay. And yeah, I want to talk little bit about that. You rightly pointed out कि वो एक individual story होता है, लेकिन फिर आप उसको system level पे कैसे समझोगे? So that's been my approach of work, even in journalism and now outside journalism as a researcher and entrepreneur. तो वो AI accountability fellowship में हमने ये किया था कि ये दूली चंद की स्टोरी ना एक न्यूज़ क्लिप में आई हुई थी किसी अखबार में। सिर्फ उतना स्टोरी था कि ये है, अब वो करेगा तो अखबार में तो आएगा, जब वो बारात लेके जाएंगे तो आएगा। तो एंड देन दे सेड कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मृत घोषित कर दिया गया है, और वो अपना डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं बार बार, और मान नहीं रही है अथॉरिटीज। वो बोल रहे हैं, उनको भगा दिया गया था हर बार कि नहीं हमारे रिकॉर्ड में तो आप मृत हो, कैसे दे दें हम आपको पेंशन। वो कह रहा है मैं सामने आपके जिंदा हूँ। तो वो अधिकारी, वो ऑफिस टाइप का सीन हो गया और रिकॉर्ड में तो आप मरे हो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो देन ही हैड टू रिजॉर्ट टू दिस बारात वाला टैक्टिक। तो जब वो हुआ तो फिर ऑफ कोर्स उन्होंने चेंज किया, बट उसके पीछे क्या है, लाइक यू सेड, वो न्यूज़पेपर, but then news initially was just about this, the मजेदार story, but उसके अंदर कितना प्रॉब्लम हुआ है सिस्टम, वो सब में नहीं हुआ था। तो उसमें, लेकिन अगेन आई थिंक द आइडिया टू बी ऑनेस्ट केम फ्रॉम अ PhD scholar who was looking at use of algorithms and AI in welfare schemes in India.
तो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो सेइंग कि वो इंटरडिसिप्लिनरी काम करने में बहुत मजा आता है, राइट राइट। और उससे बहुत चीजें निकल के आती हैं। तो उन्होंने वो टेक पे जो कुछ स्टोरीज मैंने करी थी, तो उन्होंने वो देखा और बोला कि यार ये ऐसा है, इस पे भी कुछ कर सकते हैं। कहा यार बहुत सही है। तो देन वी अप्लाइड टू दिस एआई अकाउंटेबिलिटी फेलोशिप, गॉट इट, एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। तो हो ये रहा था कि उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, कि उसमें ये हो रहा है कि हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और हमारे यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ है, वो ये बोलता है कि हर इंसान को खाने का अधिकार है, फूड इज़ अ राइट। तो अगर वो इंसान खुद नहीं कमा पा रहा है, गरीबी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, एंड देन द गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोवाइड दैट फूड। तो वो सबके एंटाइटलमेंट है कि बिलो पॉवर्टी लाइन को इतना इतना खाना, इतना चावल, इतना गेहूं साल का, महीने का ये मिलेगा, राशन बोलते हैं जिसको। तो वो गांव में जाते हैं लोग, ले आते हैं। अभी इट्स अ राइट, so it's not, I think there's a very not fine but clear difference between what is a dole and what is a right. तो अभी जब राशन को और इसको, तो बहुत सारे I get really sometimes agitated when they say कि तो कितना करेगी सरकार, गरीबों को कितना उड़ाएगी। And this is again like the example that you gave of that woman. I have many such people in the conversations कि मतलब फ्री में बांटते रहें क्या, रेवड़ी अरे भाई देश, हाँ रेवड़ी देते रहें क्या। देश के पार्लियामेंट ने सोच समझ के, पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं बोला होगा शायद जिसको आपने वोट किया है, बिकॉज यू बिलीव इन दैट, नहीं, बट देन द कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइडेड टू मेक अ लॉ दैट दिस इज सपोज्ड टू बी अ राइट। कि कोई भूखा तो ना रहे, भूखा ना रहे। वो गलत आप नहीं मान सकते हो, लेकिन है ना, आपकी देश ने डिसाइड किया है, एज अ डेमोक्रेसी दिस डिसाइडेड दिस कंट्री। So majority of the country decided this is a law and this is a right, and it draws from the constitution, and constitution also believes in basic welfare state, कि the responsibility of the state is to be welfare. India is a welfare state, right? तो वो आपकी लोगों की welfare पहली जिम्मेदारी है आपकी, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी चला आ रहा है। तो आप मानो, आप पर्सनली नहीं मानते होगे, पर देश तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना, वो कह रहा है, तो वो राइट है। अभी उसमें फिर धीरे धीरे वही फिलॉसफी चेंज हो रही है कि इसमें लीकेज होते हैं, इसमें लोग मिसयूज करते हैं, जो एलिजिबल नहीं है वो भी हो रहा है, इसमें इतने लोगों ने वो कर दिया, लीकेज हो रहा है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। तो फिर वो फिलॉसफी चेंज होती जा रही है। आपकी ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे उस सिचुएशन में आते जा रहे हैं कि नहीं, गरीब तो झूठ बोल रहा है, वो हमारा पैसा, सरकार का पैसा खा रहा है। तो वो उस डिस्पाइट बीइंग द लॉ देयर इज अ पॉलिसी परसेप्शन चेंज। तो उसमें देन अगेन देयर इज अ परसेप्शन कि टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है। वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम उस पहले से ही है कि हम नहीं जानते, टेक्नोलॉजी ज़्यादा जानती है। वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी अगर वहाँ से आ रही है तो और भी ज़्यादा, हम तो इन्फीरियर हैं ही। तो यू नो द मोमेंट AI and this thing, you just sort of submit to it, to the idea कि this will solve all your problems, we can't do this. So then they thought कि हाँ, इसमें AI लाते हैं, इसमें वेलफेयर लाते हैं, आधार तो डिसाइड कर ही रहा है कि आइडेंटिटी आपकी आधार बता देगा। यू कांट बिकम सीमा देवी एंड से कि मेरे को राशन चाहिए क्योंकि आपके आधार, आप फोटो दिखाओ, तो आइडेंटिटी यू कैन से। बट इफ सीमा देवी हरसेल्फ गोज, What if she is lying that she is below poverty line? उसके पास इनकम के और भी सोर्सेज होंगे, लेकिन वो झूठ बोल रही हैं कि वो गरीब हैं। तो एलिजिबिलिटी फॉर द स्कीम आप कैसे डिसाइड करोगे? तो इसके लिए वो जो बोल रही है मैं तो बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि हम अपनी जनता पे तो हम विश्वास ही नहीं करते, हमारी जनता तो झूठ बोलती है, गरीब हमेशा झूठ बोलता है, उसमें बहुत सारे वो रहे हैं। हम अब इसमें AI लगाते हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उन्होंने एल्गोरिदम्स लगाना शुरू किया। वो एल्गोरिदम्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि आपके जो अलग अलग डेटाबेस में आपका डेटा है, आप बिजली का बिल कितना भरते हो, आपके नाम पे कोई व्हीकल रजिस्टर है, अगर कार रजिस्टर होगी तो आप पक्का गरीब नहीं हो। और तो जो लॉ के अंदर एक जो सिस्टम था कि आपको ये मानना है कि कोई भी एलिजिबल इंसान छूट ना जाए, सर अब वो परसेप्शन चेंज हो गया है कि कोई भी इनएलिजिबल इंसान ले ना जाए। कंजूसी आ गई है वो। एक तो ये हो गया। दूसरा कि अच्छा आप किस क्राइटेरिया पे आप अगर चलो, मतलब हाउ डू यू डिसाइड कि ये एक्यूरेट क्राइटेरिया है कि अगर उसका 4-व्हीलर या व्हीकल रजिस्टर्ड है या उसने बिजली का बिल इतना दे रहा है, तो अजम्पशन के बेसिस पे एक तो आप डिसाइड कर रहे हो कि गरीब नहीं है, इसकी इनकम इतनी है या नहीं है। और दूसरा कि जो एक पहले इंटरडिसिप्लिनरी डिसीजंस लिए जाते थे इन सब पॉलिसीज में, वेलफेयर की पॉलिसीज में,
कमिटी होती थी, उसमें सोशल साइंटिस्ट होते थे, उसमें एनजीओज होते थे या इकोनॉमिस्ट होते थे। अब वो सिर्फ आपके टेक कंसल्टेंट्स डिसाइड करेंगे कि वो एआई जो आप कि ये फॉर्मूला होगा, इसमें अगर ये 4 चीज़ें टिक हो गई तो ये हम इसको रेड फ्लैग कर देंगे, इसको ग्रीन फ्लैग कर देंगे, आपका एल्गोरिदम बन गया और उसके बेसिस पे आपने डिसाइड करने लगे लोगों के बारे में। सो दिस इज हाउ दीज एल्गोरिदम्स हैव बीन डिप्लॉयड इन वेलफेयर इन मेनी स्टेट्स। उसमें वो आधार हैज बीन द बेस फॉर इट, उसके ऊपर दूसरे डेटाबेस और इससे वो जज करते हैं, असेस करते हैं। फिर वो एल्गोरिदम उस पर स्कोरिंग करता है कि दिस पर्सन इज लाइकली टू बी इनएलिजिबल, लाइकली टू बी एलिजिबल, और then it also says कि ये झूठ बोल रहा है, this might be likely lying. Were these algorithms tested before they were deployed? No. No information. We don't know that. We don't know that. How accurate are these calculations? We don't know that. Are the source code on what basis these calculations are happening public? No. Will they provide you under RTI the source code to independently be audited? No. Because the private companies that have deployed, they will say this is my proprietary this thing, despite the fact that this is being deployed on the state government's money, which is taxpayers' money, public money. फिर भी आरटीआई में नहीं फिर भी आप उसमें RTI में नहीं दे रहे हो. So then there is no data accountability, transparency on how accurate these calculations are. वो internally admit कर रहे हैं कि 10% error here and there है. भाई इंसानों की जिंदगी आप अफेक्ट इंसानों की जिंदगी अफेक्ट कर रहे हो और आपको पता है लाइक यू नो कितने इट्स लाइक मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन दीज वेलफेयर schemes. तो सो इफ यू से 10% यू आर टॉकिंग इन crores of people that it could go wrong for. Right. So that's what happened in many of the states. That's what happened in the case of Haryana, where from the pension scheme, many of the people were declared dead by the algorithm. उसके ऊपर क्या होता है कि आपके एल्गोरिदम ने तो कर दिया, अब वही हमारा इन्फीरियोरिटी जो अधिकारियों का है और वो है कि टेक्नोलॉजी के लिए यू जस्ट सबमिट व्हाटएवर इट इज। तो अब वो इंसान जिंदा इंसान जा रहा है आपके सामने और बोल रहा है कि मैं जिंदा हूँ, ये मेरे कागज हैं, आप बोल रहे हो नहीं हमारा डेटा तो बोल रहा है कि नहीं ये रॉन्ग है, यू आर लाइंग। चलो कोई और दूसरी स्कीम के लिए कोई वो बोल रहा है कि ये गरीब हूँ मैं नहीं हूँ, उसमें तो फिर भी समझ में आता है कि यू माइट बी लाइंग। वो जिंदा आदमी के लिए भी हुआ है, तो देयर इज नो मैकेनिज्म टू इन अ कंट्री लाइक दिस कि हाउ देयर शुड बी ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं है, रिड्रेसल नहीं है। सो दैट वाज द होल आइडिया दैट वी केम अबाउट। उसमें फिर जब ये केसेस निकल के आ ही रहे थे, वो एक हमने हरियाणा का देखा, फिर तेलंगाना का देखा। उसमें तेलंगाना के एक केस में ये हुआ था कि उनके नाम सिमिलर थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल से अब्दुल रहीम एंड देन से अब्दुल मोहम्मद रहीम, दीज आर टू डिफरेंट पीपल बट द एल्गोरिदम थॉट इट्स द सेम पर्सन। एक के पास भाड़े का रिक्शा था 3 व्हीलर, दूसरे के पास कार थी। सो दिस पर्सन थॉट कि सो द एल्गोरिदम थॉट कि दिस इज द कार ओनर एंड दैट ही डाइड, और उनकी विडो थी, वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर पा रही थी आफ्टर द पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर और ट्रीटमेंट, बट बिकॉज द एल्गोरिदम थॉट कि दिस पर्सन वाज अ कार ओनर, तो उनका 2 साल तक पूरा राशन का जो था वो बंद हो गया था। एंड शी हैड टू फाइट अ केस फर्स्ट इन हाई कोर्ट देन इन सुप्रीम कोर्ट टू गेट हर राशन कार्ड renewed. For 3 years she fought. My God. What I'm amazed at is not the fact कि algorithm पे भरोसा कर रहे हैं, the fact कि भाई these are incompetent tech deliveries. Yeah. Tech implementation ऐसे थोड़ी होता है। ये मतलब just because it's government, हम public sector में कुछ भी tech deploy कर रहे हैं क्या, कुछ भी तरह से implement। As you rightly said कि testing हुई थी, आपने कैसे verify किया, क्या किया, कितने डेटा पे टेस्टिंग हुई थी, पायलट रन किया था, बहुत कुछ है। मतलब टेक डिप्लॉयमेंट इज हम जब अपने कंपनीज में कुछ टेक प्राइवेट में आप करते होगे तो बेटर करते होगे। एग्जैक्टली प्राइवेट में टेक आप मतलब इस तरह के टेक को तो आप बिल्कुल मतलब जिसने बनाया आप उसको निकाल दोगे अपनी कंपनी से, और यहाँ पे आपने लोगों को बनाने दिया है, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। मतलब दिस इज बैड टेक। एंड वो जो भरोसा और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। एंड द फनी थिंग इज दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग this tech, they have a chip on their shoulder कि हमने कुछ गवर्नमेंट के लिए बना दिया। भाई तुम लोगों ने pathetic काम किया है।
They get it's the same company. They get contracts from all state government for this kind of technology, and it's getting deployed. Still not transparent, and it's expanding. कोई ऑडिट भी नहीं कर सकता नहीं, audit भी नहीं है, transparent which है is नहीं publicly. absolutely crazy. So yeah, so that's I think so that's what we research in that AI accountability fellowship. As part of that, we did for Haryana, Telangana, 2 states, and a little bit of Odisha. Similar issues, similar technologies, and government public sector deployment for AI is a huge sort of market for the AI industry, and they are looking for it. But again, we don't have these processes. I mean, this is the example that, this way, and it affects most vulnerable people. Like, most vulnerable people are affected by public sector deployment of, and large sections of people of AI. So there the question of accountability is very important and transparency is very important, which is what we try to highlight from this. And now we are building a dashboard again for sort of collecting data on deployment of, what we call now in our research at NutGraph is welfare algorithms. अच्छा, okay. So, what does welfare algorithms, how they are evolving, how they are being deployed. So that's what we are working on. WhatsApp Watch was coming to WhatsApp Watch was a project that I was doing with Princeton University. In the US, they last year, has it continued? Or? No, it stopped after a point. But initially, we did it for like a year, where we were collecting data in many countries. We were doing in the US, in India, and I think a few Latin American countries also, where we were collecting data from public WhatsApp groups. Okay. And when we say public WhatsApp groups, basically where admin has liberty to join anyone and people can join using the link also. Okay. So we developed, the lab that I was working for called Digital Witness Lab at Princeton University. They developed certain tools where our sort of data collection tools will be part of these WhatsApp groups. And then from there, we can collect the information on what messages are being circulated without collecting any data on individuals. Anonymized data, just the content of the messages and the communication. And we did it for over, I think, 3,000 WhatsApp groups, which had large number of people, like youth people. And then we were looking at what's the communication, what are the sort of drawbacks of communication that are happening in WhatsApp groups. And something that we, our research sort of pointed out, and this was during the elections, during the national elections, in other countries also we did during the election. Because WhatsApp sort of, there is of course, question of privacy. So the privacy is very, very important that, we don't track who is behind a certain message. But what happens is when political message is circulated on WhatsApp, it often sort of was in this very messy space of personal versus political. So, why do misinformation circulates very fast on WhatsApp? Because when it comes to your WhatsApp phone message in a phone, even in a group, it feels like your own people or people from like communities, general people who have no sort agenda. Of incentive to propagate any agenda are simply just sort of sharing it. It comes from your circle of trust. So it feels like, so it feels like there is sort of inhibited trust in it, and then feels like a organic spread of certain messages. So you believe in it. Now, this whole nature of WhatsApp was also being misused by political actors. So they won't present themselves as political actors. They would just, without any identity or without any sort of affiliation, showing their affiliation, they will all sort of project political messages during elections, right? So if you believe that this has come from, like, it's like advertisement. If you believe that the advertisement is coming from the company itself, you see it as advertisement. Or if you see something is coming from the political party, you see it as political campaign. But if you see this is just generating within the society, suddenly you feel like there is a wave for that. Right. So that's what we sort of try to find out, that okay, this very complex ecosystem of WhatsApp groups where
they don't have to take accountability. Otherwise, political parties are accountable for political speech, right? There is whole model code of conduct. What you are saying, you can't, if you're lying from public stage, or if you're giving a certain false promise to a certain community, then you can be held accountable later, and you can say that you are lying or you are abusing or whatever, right? A model code of conduct would apply. But because then it is in a private ecosystem of WhatsApp, and then you don't even have to reveal your identity, you don't have to reveal your affiliation, you can say whatever and spread whatever misinformation. There is no accountability in that. So that's what we try to sort of highlight, that that was a dangerous sort of had become a dangerous ecosystem for the political speech. Now again, as I said, the discourse has moved much beyond with AI and deep fake and all. Yeah. Those were the things we could highlight, that in the dangers of it. Now I think the ship has sailed of these issues. Yeah. अच्छा समर, एक बात बताइए. सो ये जो LCW है और नटग्राफ है अभी चल रहा है, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? हाउ आर यू मेकिंग मनी? Right. So as I said, there is immense value in interdisciplinary research, and there is space for that interdisciplinary in the social sector, in environment sector. There are major environmental crises that as a society, as a country, we are dealing with. Climate change is real, right? It has its own impact, etc. And there is a lot of work that is required there, where many stakeholders are investing, including government needs a lot of work to do with the communities in building their resilience for climate. There is a lot of academic work happening. Universities do a lot of work in research, etc. So we have placed ourselves as this entity which provides data and research to all these institutions in work. Like you also mentioned that even a startup can use it. Absolutely. So or even an industry body like renewable energy, etc. Energy associations, they are using. So we provide service. We act as an agency that provide data, research, service, making sense of information, building ground up database for any institution that wants to use and build those databases. So we provide those services, and that's our basically revenue model that we work with. Fantastic. That's actually fantastic. I mean, I assumed it would go there. And how do you get, how do those people reach you? How are they discovering you? I mean, yeah, we don't come from proper sort of, I don't come from startup background or entrepreneurship, but yeah, I think now the work reputation and credibility has spread, and the work, it speaks for itself. So that's how I think it's been spreading and being known. Also because we come from communication background, so we are good at ourselves, like putting out there. Right, got So it. that's what we, at least I think that's those skills we keep using, even making sure that this work is visible. Got it. Yeah. So how big is the Nutgraph team? We have 10 people full time, and then, as I said, we also work. The entire model is about data from the ground. So we have a network of researchers which is spread across the country, part-time researchers. So we have about 40 part-time researchers. Every state has researchers which are sort of work with us on like regular basis. Got it. And LCW has a separate team? No, it's the project under Nutgraph. Oh, I understood it right. Yeah. Perfect. Even the LCW came first. Even it came first, yeah. Okay, got it. Just one last thing. So, how have you found the team? How did did you Came start? about. How did you find people? Yeah, how did you find people? Yeah, that's a very interesting, I think, question. I think that's something that I struggled. Can I also say something? Your WhatsApp status says, I work only with nice people. Now, please continue. Yeah. So I think that was a learning. There is no existing model or prototype for this kind of work. This is a model that has developed on the go, Right. on the work we figured. I also, like I said, I don't come from a business training background, etc. Right? So I also learned on the go. And that's when I realized that, for this kind of work, people who really believe in this kind of work would be the right people to work with. That doesn't mean that
I had that complaint with, and I keep coming back to that, that doesn't mean that if people really want to do that, they should be exploited, which is a case with many of the other space in journalism where there's not enough resource. So it's like, okay, nahi hai paisa, par karna hai story to karo. So I like, you need to have those resources to keep people happy at work. And again, because this work is about society, about many a times people who are at the brink and marginalized and social work, etc. So it affects. But then how do you do it like in a way that it looks more professional to you? So those are the things that we institutionally we wanted to provide, but still it can't be like a job. It can't be like a 9 to 5 job ki main kar raha hu, ye ho gaya, ho paya to ho paya, nahi ho paya to nahi ho paya. Initiative has to be there because you really want to do things, the ideas need to come. Initiative need to come in people. And it's difficult to find those kind of people, but then those people would come by, through the process, etc. And and even in collaborations, partnerships, because we work on this model, I am very clear that if things align with this thought process, this ideology, like even in NGOs and others, like funding, etc., social sector, it's very complicated, right? If somebody is giving you fund for certain work, then they want you to do that certain way, etc. And there are any like these conditions, I was like, thank you, keep your money. We are happy with what we are doing. We wouldn't do it this way. So I think when there is like clarity of what self-awareness, clarity of what you want to do, why you want to do, and even in terms of partnership, team, etc., collaborations, I think these are the few filters that I keep, and I was like, it's good to probably remain small as long as it keeps your happiness, peace of mind, and satisfaction of work rather than complicating it. So yeah, that's why that message status. Yeah, I love that. Every time I ping you, I see that, and I'm like, I'll ask him this. Yeah, it's good to specify in the beginning. Gotcha. Okay. So I want to now leave the audience with a question. And I've been thinking, ki kya puchna hai? I know you said that everything that you do and everything journalists do comes from a place of curiosity. Yeah. But this is my personal thought, I also feel there is a little bit of care also. It's not just curiosity, it's care as well. Otherwise, curiosity you can have in every space. Absolutely. Care is what makes you want to go into a tribal area and figure out what is happening. You will care about people somewhere. Empathy, I would say. Absolutely, exactly, empathy. Yeah. So, what I want to ask the audience today is, what will make us care? What makes you care about something? What makes you empathetic about something? Or do we have empathy at all? Is it diminishing? Is it getting reduced? Or do we still bother about something? That's it. Thank you so much, Sambhav. I know we can sit down and talk for another 2 hours, aram se. But we will do that. Yeah. We will do that, and we will have another podcast. I want to discuss more things with you. Yeah. But thank you so much for giving us this time and being here. Thank you so much. Thanks for having me here. But I just wanted to add to that point. I don't know if you can later probably think it. No, this empathy thing is also, I think, a very important. I'm glad you pointed out. So when, people, there's performative empathy also. Absolutely. Right? Absolutely. And I have seen that. I've seen that because, now people are smart. People are smart and they know, what works, what works and what doesn't. But in this work, it doesn't work after a point. It can be seen through because people on the ground are very smart. They see through it. You can fool your corporate boss, but you cannot fool people on the ground, communities who live their struggles every day. So if, people, as I said, again, I work with many kind of people and then it keeps filtering out. And there are instances where people might perform empathy or people might, and they see through it. They won't talk to you. They'll say, go back. They won't give you any information.
right? And that happens with many journalists also. Uh, Because, just you coming from your AC chambers and then going and then reporting, it will work initially. But then people see through it that this is performative empathy and it won't work. So, yeah, I think that's also one very big filter in this space. And you rightly pointed out that, when you're going in such areas, it has to come from a point of care and empathy. Got it. Thank you so much. I have absolutely enjoyed this conversation. I was listening. Yeah, no, it was wonderful. I also didn't realize that it'll go this long. I think the audience will love this. Hopefully, yeah.